Oh. Hello, sir. द्या बरं. झालं इकडे झालेले आणि दोन्ही चालू केले एकदा कन्फर्म करून घ्या की युट्यूब चालू आहे का बघा बरं. त्या लिंक वर क्लिक करा, दिसतंय का बघा. युट्यूब लिंक वर क्लिक करा. 11. Good morning, Rathod sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Sir. Okay. Hello. sir. Good morning, all of you, sir. Hello. Hello, sir. एक मिनिट सर दिसतंय तुमच्यामध्ये सांगितलं सर तुम्ही बैसाने. हॅलो, गुड मॉर्निंग. ते एक बैसाने सरांना करतोय आम्ही कनेक्ट. हो हो हो. करायला लागले चेक. झूम काढून बघा कोणता. नाही ते जाऊ द्या बघा. नाही हा सर कनेक्ट झाले तुम्ही. आम्ही दिसतोय. नाही तुमचं नाव टाका ना सर तिथे. हा बर. गंजवार सर माझं काढून देते. गंजवार सर. Hello. हॅलो. साईडला येतो. सर. हेलो. एक सुरू करावं. इन्होंने अपने को तक लिखवा दिए हैं, तो आपने मेरे को 5 रुपए का बच्चा सबसे पता करना मैं 5 रुपए रानी से पूछ लिया होगा इन्होंने इधर को करून घ्या.
ऑडिबल है। अवतार मॉर्निंग डॉक्टर सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गंजवार सर, गंजवार सर सुरू करा। हॅलो गंजेवार सर, राठोड सर. हा सर, बोला सर. अहो गंजेवार सरांना सुरू करा ना साहेब, सुरू करा म्हणतायत. नंबर चांगले झालेत, 112 लोक जॉईन आहेत, 115 लोक जॉईन आहेत. चालू करा सर आता. हा गंजेवार सर. गंजवार हा, सुरू सर. करा. हा, आवाज येतोय का सर माझा? हो, येतोय. येतोय. बर. माझा येतोय? हा सर, येतोय. का असेल? Good morning, one and all. Friends, today is the national webinar on current trends in Indian history. I welcome you all. On behalf of the management principal of MSP Mandals Arts, Commerce and Science College, Killi Dharur, I welcome you all. Today is an auspicious day for us because with the permission of the management and the principal, we are going to organize a one-day national webinar on current trends in Indian history. The present webinar is organized collaboratively by Department of History and IQAC, MSP Mandals Arts, Commerce and Science College, Killi Dharur. I welcome you all once again. With the permission of Honorable Shri Prakash Dada Solunke, President, MSP Mandal, Honorable Shri Satish Rao Chauhan, the Secretary, MSP Mandal, Aurangabad, Honorable Shri Jaisingh Bhaiya Solunke, Chief Member, College Development Committee, Arts, Commerce and Science College, Killi Dharur, Honorable Professor Mukundrao Sawant, Member Invitee, College Development Committee, Arts, Commerce, Science and Killi Dharur. आवाज तो आ रही है माइक पे जैसे Honorable Shri Lobhaji Chavan, Honorable Shri Ajay Srikhar, Honorable Shri Indranil Jadhav, the Principal of our college, Dr. Shivdas Sirsat sir, the Vice Principals, Dr. M.N. Zogde sir, Dr. M.M. Gaikwad sir, and the convener of the webinar, Professor Mangilal Rathod. गंजर आवाज येतोय तुमचा? नेटचा काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतोय. एक नोट टाका, बाकीचे पार्टिसिपंटने आपला आवाज म्यूट करावा.
त्याच्यावरच पुकारला पाहिजे ना. बोला सर. बोला. Hello, participants are requested to mute their mic. मागच्या वेळेलाही असं झालं बरं. केले सर mute आता. एकशे 32 जण जॉईन झाले. युट्यूब लिंकला जास्त चेक होईनच बघ. म्हणून मी हा बरोबर ट्रेक करून बघितला. फक्त यांचा नॉईस एखाद्या वेळेस मध्ये असं बोलायला लागते बाकी काही नाही. नाही ते इथून आपण हे करायचं ना. केलं आता अनम्यूट करायचं. सर एकदा फोन करतो त्यांना. गंजावर सुरू करा ना तुमचं. नाही येत मला. करा करा करा. कोण आहे काय बोलणार आहे? Good morning. Today is the national webinar on current trends in Indian history. I welcome you all. On behalf of the management and the principal, I welcome once again to all of you. Without making any more delay, let me invite to the president of the inaugural session and the dear principal of our college, Principal Dr. Shivdas Shirsat sir, to give the welcome speech. Principal Dr. Shivdas Shirsat sir. एवढे बोला होता थोडा. हाँ. Welcome to all of you. Myself, Principal Dr. Shirsat. On behalf of Prasarak Mandala Arts, Commerce, Science College, District Bid, Maharashtra, I began my saluting the sacred memory of late Vinayakrao Patil, late Ramrauji Avargavkar, and late Sundarauji Solanke, the founder member of Marathwada Shikshan Prasarak Mandal and of this. Do not disturb. आहे का एखादा कॉल यायला लागले जास्त. I am very happy because this is a national webinar of our college. I am grateful of Honorable MLA Sri Prakash Dada Solanke, President, Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Sri MLC Sri Satish Bhau Chavan, General Secretary, Marathwada Prasarak Mandal, CDC member Honorable Singh Bhaiya Solanke, Sri Lobaji Chavan, Honorable Sri Dikkat, Honorable Sri Mukund Sawant, Honorable Dr. Ram Singare, Honorable Sri Ina Jadhav,
the office bearers of all organizations have given their best wishes for this webinar. I also welcome to inaugurator and keynote address of this webinar, Dr. Kishore Gaikwad from Social Justice and Empowerment of Tribal Population, Indira Gandhi National Tribal University, Lalpur, Amarkantak. Resource persons, Dr. Anil Baisane, Professor and Head, History of Department of History, Jai Hind College, Dhule. Resource person, Dr. Shyam Koriti from Rashtriya Sant Gadge Maharaj, Nagpur University, Nagpur. I welcome to the faculties of different colleges who are participate in the webinar. I give best wishes to organizer of this webinar, Professor Mangalal Rathod, and IQAC coordinator, Professor D.N. Ganjawar. My college colleague, Vice Principal Dr. M.N. Gaikwad, Professor M.A. Zogde, and also handling the technical side of this online webinar, Professor Gopal Sagar and Professor Ananta Gade. It gives my great pleasure to invite for national webinar on current trends in Indian history. Dear friends, Indian democracy is one of the most dynamic histories in the world. Today, in its 73 year of independence, India has come a long way from a newly independent democracy to an emerging global power. Let's take a look at the trends of the 21st century that will go down in Indian history and also shape the future. The end of 20th century saw the reconstructing of the state border and the curving of a new in existing countries. In 3 November 2000, new states were added to the existing list of 25 Indian states. Outside Madhya Pradesh, Chhattisgarh ranked 26. Uttarakhand was later separate from Jharkhand, which is a part of Uttar Pradesh and Bihar. The latest addition to the list is Telangana, a part of Andhra Pradesh, which was declared an independent state in June 2019. Also, the state of Jammu and Kashmir has been declared as an independent state. Today, India is a federal state consisting of 36 federal states and union territories. Today, India is recognized as one of the fastest growing economic in the world. This reflects in the current states as the world's sixth largest economy based on gross domestic product. I hope there will be fruitful discussion in this place and sharing knowledge will come up with useful ideas for students and the community. Enjoy this webinar. Thank you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you for your credential. Thank you, sir. Thank you for your presidential speech. It gives me a great opportunity to introduce to you before introduce to you of Dr. Kishore Gaikwad. Dr. Kishore Gaikwad is the professor and chairperson, Dr. Ambedkar Chair in Social Justice and Empowerment of Tribal Population, Indira Gandhi National Tribal University, Lalpur, Amarkantak.
Friends, it's a great opportunity for us that such a great personality is here in this webinar for giving the keynote address. So without making any more delay, may I request Dr. Kishore Gaikwad, Professor and Chairperson, to give the keynote address from Amarkantak. Professor Dr. Kishore Gaikwad. Namaskar. I'm at outset must. Am I audible? माझा आवाज येतोय? Yes, sir. Okay. Oh, sir. At outset, I must thank this Raya Shikshan Sansad College at Bid and especially the president of this session, Principal Saab, Shivdas Shirsat sir, my colleague, organizers, and my esteemed senior friend and colleague and resource person, Professor Baisane sir, and my another young friend, Dr. Sham Koreti from Nagpur University. It is very pleasurable moment to share this virtual dais with all to close friends. Actually, I didn't know that in the beginning I was supposed to speak. But anyway, as a keynote, I would like to put up some, my thoughts across this August gathering. I think most of the माझे सगळे जे बघणारे आहेत आज जे आपल्याला जुळलेले आहेत झूमच्या माध्यमाने ते बहुल मराठी भाषिक आहेत. तर मला असं वाटतं की मी मराठी मधूनच बोलेल. ठीक आहे ना? ऑर्गनायझर्सने मला होकार सांगावा म्हणजे मी पुढे कंटिन्यू करेल. डॉक्टर शिवदास सर, मराठीतून बोलावं का इंग्लिश मधून? हॅलो. हा सर, दोन्ही लँग्वेज मध्ये बोला सर, प्लीज सर. ओके ओके ओके, दॅट विल बी कम्फर्टेबल. खरं म्हणजे मी माझ्या ज्या स्लाइड्स आहेत त्या मी इंग्लिश मधून बनवल्यात, परंतु काही मला संज्ञा आणि संकल्पना इथे विशद कराव्याशा वाटतात रिसेंट ट्रेंड्सच्या अनुषंगाने, तर त्या मी मराठीतून करेन आणि मी मिक्स बोलायचा प्रयत्न करेन. एनिवे, खरं म्हणजे हा जो विषय आहे रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री रायटिंग किंवा हिस्टॉरिकल रिसर्च, हा प्रत्येक 10 वर्षानंतर म्हणा बदलणारा असा विषय आहे. बदलणारे त्याच्यामधले घटक आहेत, बदलणाऱ्या संज्ञा संकल्पना आहेत, बदलणारे बरेचसे त्याचे विषय वस्तू आहेत. तर त्या अनुषंगाने आपण 2020 मध्ये जे चर्चा करत आहोत ते आपण कोणकोणत्या सैद्धांतिक आणि त्या अनुषंगाने आपल्या संज्ञा संकल्पनाच्या त्या सगळ्या चौकटीमधून बोलत आहोत ते इथे मी विशद करतो. मला तरी वाटतं मला होस्ट आहेत ना दिगंबरराव गांजे सर? येस सर. गांजेवार सर, मला स्क्रीन शेअर करायची परवानगी द्या. डॉक्टर गाडे सर, सरांची स्क्रीन शेअर करा. डॉक्टर गाडे सर, सरांची स्क्रीन शेअर करा. शेअर स्क्रीनची मला परवानगी द्या. सर तुमची स्क्रीन शेअर आहे सर ऑलरेडी. नाही, येत नाही. येत नाही. स्क्रीन शेअर म्हणजे मला माझं स्क्रीन शेअर करण्याची परवानगी द्या. ते तिथूनच करावं लागेल सर. रिएक्शन मध्ये करेन, परंतु ते कॉर्नरला उजव्या बाजूला 3 डॉट्स आहेत ना, तुमच्याकडे होस्ट कडे दिसतात. 3 डॉट्स मधून हा एक मिनिट सर. शुअर. गाडे सर, स्क्रीन शेअरचं त्यांना हे पीपीटी नाही म्हटलं होतं. हा झालंय. ओके, माझं स्क्रीन दिसतोय? Yes. हा सर, विजिबल आहे सर. ओके.
ओके. तर सगळ्यात सुरुवातीला मला म्हणजे मी जसं सांगितलं की काही नवीन ज्या संज्ञा आणि संकल्पना आलेल्या आहेत या मागच्या 20-30 वर्षांमध्ये, त्याच्याबद्दल इथे मी महत्वाच्या दृष्टीने प्रकाश टाकणार आहे. खरं म्हणजे जे वेगवेगळे आयाम आणि वेगवेगळे परिमेय हे आपल्याकडे मागच्या 20 वर्षात आलेले आहेत, त्या अनुषंगाने काही अन्वेषणाच्या पद्धती पण उलगडलेल्या आहेत. अनालिसिस मेथड्स आणि अनालिटिकल टूल्स काही म्हणजे प्रकाशात आलेले आहेत, त्यावर मी भाष्य करण्याचा प्रयत्न करेन. आपल्याला ठाऊकच आहे की जो हिस्टॉरिकल रिसर्च असतो आपला, दॅट इन्व्हॉल्व्स म्हणजे आपण काही एक भूतकाळातला म्हणा किंवा गतकाळातला एका विशिष्ट काळाचा, विशिष्ट व्यक्तींचा, विशिष्ट घटनेच्या अनुषंगाने अभ्यास करत असतो. आणि या वेळेला म्हणजे या प्रसंगी आपण आपल्या रिसर्चला जे प्रश्न विचारतो, व्हॉट क्वेश्चन्स वी आस्क टू आवर रिसर्च मॅटर्स अ लॉट. खूप महत्वाचे ते ठरतात की ज्या दिशेने आपला हिस्टॉरिकल रिसर्च जाणार आहे, आपण कोणत्या प्रकारचे प्रश्न आपल्या रिसर्चला किंवा आपल्या संशोधनाला विचारत आहोत. आपण इन टर्म्स ऑफ व्हॉट आणि व्हेन विचारलं तर त्याच प्रकारचे उत्तर येतील, म्हणजे त्याच प्रकारचे तुम्हाला व्यक्तींचे नावं येतील किंवा काहीतरी सणावळ्या किंवा दिनांकाचे उल्लेख येतील. जर आपण व्हाय आणि हाऊ च्या अनुषंगाने प्रश्न विचारले, का आणि कशामुळे, अशा प्रकारे जर प्रश्न विचारले आपल्या संशोधनाला, इतिहासाच्या संशोधन ज्ञान निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये, तर मग आपलेच तेच साधन स्रोत आपल्याला वेगळी भाषा सांगू शकते. आपण व्यक्तिनिहाय, एखादे व्यवस्थानिहाय, म्हणजे एक गुलामगिरी असेल, जाती व्यवस्था असेल, स्त्री दास्य असेल, स्त्री प्रतिमा असतील, कामगार असेल, शेतकरी असेल, असे वेगवेगळे आपण जर एका कोणत्या तरी व्यवस्थेचे घटक म्हणून असा अभ्यास केला तर आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आपल्या संशोधनाला इन द बिगिनिंगच विचारावे लागतील. त्या अनुषंगाने आपण ह्युमन कल्चर म्हणजे संस्कृतीवर आजकाल म्हणजे अलीकडे जो इतिहास संशोधनाच्या अनुषंगाने जे जे विषय घेतात आहेत ते संस्कृतीच्या अनुषंगाने बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणामध्ये अभ्यास सुरू आहे. तर याच्यामध्ये इतिहासकाराचा किंवा इतिहास संशोधकाचा काय रोल असतो, काय कशा प्रकारची भूमिका असते, ते आपल्याला इथे समजून घ्यायला पाहिजे. खरं म्हणजे हे आपण आपल्या PhDच्या किंवा आपल्या कोर्स वर्क्सच्या मुलांना, स्टुडंट्सना शिकवतोच, परंतु ते नंतर आपण बऱ्याच प्रमाणामध्ये विसरतो असं आपल्या लक्षात येतं. एका छोट्याशा घटकावर, एखाद्या छोट्याशा घटनेवर पण चांगल्या प्रकारे इतिहास लेखन होऊ शकतं जेव्हा आपण ते कन्सेप्च्युअलाइज म्हणजे त्या वैशिष्ट्यतेने, त्या घटनेच्या स्थळाच्या, त्या घटनेमध्ये किंवा त्या प्रसंगामध्ये अंतर्भूत झालेल्या वेगवेगळ्या सामाजिक वर्ग आणि प्रवर्गाच्या अनुषंगाने आपण ती घटना बघतो, तेव्हा तो मायक्रो स्टडी, तो सूक्ष्म अभ्यास हा महत्वपूर्ण ठरतो. आणि इतिहासाच्या बऱ्याच प्रमाणामध्ये ज्या प्रकारचं संशोधन होतं त्या संशोधनाला निष्कर्ष असे नसतात, त्याला समारोप असतो. कारण आपण जे प्रश्न विचारलेले असतात आपल्या संशोधनाला ते बऱ्याच वेळेला पासून पर्यंत असे विचारलेले असतात आणि त्याच्यामुळे आपण काही प्रक्रिया, प्रोसेसेस इव्हॉल्व करण्याच्या, प्रोसेसेस अनालाइज करण्याच्या अनुषंगाने त्याच्या समारोपाकडे, त्याच्या निष्कर्षाकडे पाहिलं पाहिजे. म्हणजे एखादा विषय घेतला, त्या विषयाच्या अनुषंगाने त्या विषयाच्याच
म्हणजे सापेक्ष असं आपल्याला त्या टाइम कॅप्सूलची ज्याच्यावर आपण अभ्यास करत आहोत त्याचं पिरियडायझेशन करायला पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर महाराष्ट्राचे कामगार हा विषय घेतला तर महाराष्ट्राच्या कामगारांचे मुख्यतः ज्या प्रकारचे लढे झाले, ज्या प्रकारचे त्यांचे वेगवेगळ्या मुद्दे हे वर आले, त्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपण त्या विषयाचं पिरियडायझेशन, त्या विषयाचं आपण एक प्रकारे काल काइंड ऑफ खंड असे आपण मांडू शकतो. आणि त्याच विषयाच्या अनुषंगाने आपण त्याचं संज्ञा कन्सेप्च्युअलायझेशन हे पण कसं करायला पाहिजे हे मी नंतर थोडं पुढच्या काही स्लाइड्स. आता ह्या साध्या स्टेजेस आहेत आपल्या संशोधनाच्या आणि मुख्यतः इतिहास संशोधनाच्या ह्या अतिशय नॉर्मल स्टेजेस आहेत. परंतु याच्यामध्ये बराचसा भाग हा आपले काही सहकारी गाळतात किंवा विद्यार्थ्यांना ते माहीतच नसतं. म्हणजे जेव्हा आपण कोणत्याही समस्याचं म्हणजे फॉर्म्युलेशन करतो, कोणती त्या समस्याचं एक प्रकारे आपल्या एक्झिस्टिंग वाचलेल्या विचार म्हणजे वाचनामध्ये म्हणा किंवा ज्ञानामध्येच्या अनुषंगाने म्हणा एखादी संशोधन समस्या मांडतो, त्या संशोधन समस्याच्या मुळाशी आपला खरं म्हणजे आवडता विषय, हे विषयाबद्दल आवड खूप महत्वाची असते. बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपले गाईड सांगतात की हा विचार कर आणि मुलं त्याच विचार करतात, त्याच्यामध्ये त्यांचं अजिबात म्हणजे मूड नसतो, मन नसतो. एनिवे त्याच्यामध्ये त्या विषयाला आपण जे प्रश्न विचारतो त्या प्रश्नाच्याच अनुषंगाने डेटा कलेक्शनच्या पद्धती ठरतात. म्हणजे आपण मौखिक पद्धत वापरणार आहोत का लायब्ररीमध्ये जाणार आहोत, त्याप्रमाणे डिझाईन ठरते, अनालाइज डिझाईन ठरते. हे कधी ठरतं हे सुरुवातीलाच ठरतं आणि त्या अनुषंगाने आपण सोर्सेस गोळा करायला. इथे महत्वाची बाब मला नमूद करावीशी वाटते की पूर्व संशोधनाचा आढावा घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. आता पूर्व संशोधनाचा आढावा कशासाठी घेतात हे बऱ्याच वेळेला मी म्हणजे आपल्या PhDच्या वायवामध्ये विचारतो आणि मुलांना खरं म्हणजे बऱ्याच कमी मुलांना माहित असतं की जे आपण संशोधन सुरू करण्याच्या आधी जे ज्ञान संचित आहे ते ज्ञान संचित माहित असणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्या ज्ञान संचितामध्ये माझं काय योगदान असणार आहे याची स्पष्टता, क्लॅरिटी ही खूप महत्वाची आहे. आणि त्याच्यामुळे माझं काय नवीन भर आणि कोणत्या स्वरूपाची भर ही मी टाकणार आहे त्या अनुषंगाने ती स्पष्टता खूप महत्वाची आहे. एनिवे पुढे आपण जेव्हा थेसिस म्हणजे सगळ्या चॅप्टर स्कीम वगैरे लिहितो तेव्हा आपण जनरलाइज करून सामान्यीकरण करून आपण तिथे बऱ्याच वेळा थांबतो. तिथे थांबायचं नसतं. खरं म्हणजे आपण बऱ्याचशा संशोधनामध्ये आजकाल या शेवटच्या 2 स्टेप्स या गाळल्या जातात. म्हणजे अनालिसिसचा, एक प्रकारे अन्वेषणाचा आणि दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सिद्धांतनाचा. म्हणजे माझ्या त्या विषयाच्या अनुषंगाने मला कोणत्या प्रकारचं सिद्धांतन मांडायचं आहे हे शेवटी सगळ्या हिस्टॉरिकल रिसर्च असणं हे अगत्याचं आवश्यक आहे. एनिवे मी आता काही बाबी अशा घेईन की ज्या मागच्या 20 वर्षामध्ये 25 वर्षामध्ये ज्या नव्याने येऊ घातलेल्या आहेत आणि त्या बऱ्यापैकी आपल्याला म्हणजे बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला संशोधनाची आणि अन्वेषणाची दिशा दाखवतात. खरं म्हणजे मायक्रो आणि मॅक्रो हिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला फरक माहिती असेल की मोठ्या प्रमाणात म्हणजे महाराष्ट्र राज्य किंवा भारत या स्तरावर जर इतिहास लेखन केलं आधी होत होतं
ते मॅक्रो मध्ये जातं. पण त्याच कंटेक्च्युअलाइज करून आपण छोट्याशा गावाच्या अनुषंगाने किंवा छोट्याशा शहराच्या अनुषंगाने आपण जर तो रिसर्च केला तर तो मायक्रो स्टडी मध्ये गणला जातो. आता मायक्रो स्टडीचे खूप खूप फायदे असतात, काही तोटे पण असतात. जर आपल्या काही अज्ञानामुळे काही गोष्टी त्याच्यामध्ये अंतर्भूत झाल्या तर त्याच्यामध्ये तोटे पण असतात. मी काही उदाहरणं देतो. आता समजा मी एखाद्या छोट्याशा गावाच्या अनुषंगाने मायक्रो स्टडी करणार असेल, परंतु मला मॅक्रो स्टडी माहिती आहे, म्हणजे भारताचं स्वातंत्र्य आंदोलन ह्या गोष्टी मला माहिती आहेत. भारताचं स्वातंत्र्य आंदोलन हे जर मी एखाद्या छोट्याशा शहराच्या ठिकाणी गेलं आणि मला माहित असेल की फॉर एक्झाम्पल महात्मा गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली 30 ते 32 ते 30च्या दरम्यान. पण त्या दरम्यान माझ्या गावामध्ये जे काही चळवळ झाली असेल त्याचं सरसकट सविनय कायदेभंगाची चळवळ किंवा गांधीजींची चळवळ म्हणून असं नाम विधान करणं हे चुकीचं ठरतं बऱ्याच वेळेला. आणि तो एक ऍडव्हान्टेज असतो की आपल्याला ज्या गोष्टी अदृश्य ठेवलेल्या आहेत इतिहासामध्ये, ज्या लोकांचे योगदान अदृश्य ठेवलेले आहेत, त्या योगदानाला, त्या बाबींना, त्या घटनेंना आणि त्या गोष्टींना, त्या स्थळाच्या योगदानाला आपल्याला प्रकाशात आणण्यासाठी मायक्रो स्टडीज खूप महत्वाचं आहे. सोलापूरमध्ये दंगे झाले 31-32 मध्ये आणि त्याची नोंद सविनय कायदेभंगाची चळवळ आमच्या सोलापूरमध्ये कशी झाली या दृष्टीने मांडण्यात आलं. परंतु नंतर तिथले स्थानिक न्यूजपेपर्स, तिथल्या स्थानिक लोकांच्या मोठ्या प्रमाणात जर आपण म्हणजे इंटरव्ह्यूज वगैरे बघितल्या आणि त्या अनुषंगाने जो रिसर्च पुढे आला, तेव्हा आपल्याला असं कळतं की सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीचा फार कमी संबंध तिथल्या स्थानिक चळवळीला होता. तिथल्या स्थानिक चळवळी किंवा दंगेचं मोठं कारण हे हिंदू मुस्लिम यांच्यामध्ये असलेली सांप्रदायिकता, जमातवाद हा होता. तर अशा प्रकारे आपल्या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या ग्रँड नेरेटिव्ह, महत्व कथन किंवा मॅक्रो स्टडीजच्या अनुषंगाने आपल्याला फसवतात किंवा दिशाहीन करतात, आपला चुकीचा निष्कर्ष किंवा इतिहास लिहिला जातो. ग्रँड नेरेटिव्हचा विषय निघाला, त्याच्यामुळे पुढचा मी मुद्दा घेतो. ग्रँड नेरेटिव्ह म्हणजे महत्व कथन. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपल्याला मोठमोठ्या कालखंडासाठी एखाद्या व्यक्तीचं नाव हे दिलेलं दिसतं. म्हणजे गांधी युग, टिळक युग, काय म्हणतात त्याला, मवाळांचं युग, अशा प्रकारे पूर्ण 20 ते 30 वर्षाच्या कालखंडासाठी एकाच व्यक्तीचं नाव दिलं जात आहे. 1920 ते 47 पर्यंतच्या सगळ्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या घटनेंना गांधी युग या चॅप्टर मध्ये जर आपण समाविष्ट केलं तर बाकीच्या लोकांचे, बाकीच्या संघटनांचे, बाकीच्या व्यक्तींचे योगदान हे आपण छोटे करतो, हे योगदान आपण सस्पेंडेड करतो, अदृश्य करतो आणि त्यांना आपण न्याय देत नाही. तर या बाबीला लक्षात ठेवण्यासाठी ग्रँड नेरेटिव्ह, महत्व कथन या प्रकारचा आपल्याला एक संकल्पना मागच्या 30 वर्षांमध्ये आलेली दिसते. आणि त्याच पुढे आपण जर गेलो तर डिस्कोर्स म्हणजे चर्चा विश्व, म्हणजे ज्या प्रकारचं एक चर्चा विश्व म्हणजे एक वक्तव्य हे पूर्ण सर्क्युलेशन मध्ये, एक पूर्ण इतिहास अभ्यासक्रमांमध्ये किंवा इतिहास संशोधनांच्या मानसिकतेमध्ये हे टाकलेलं असतं, त्यानुसारच आपले स्टुडंट तिथे काम करत असतात. म्हणजे कोणी काही घराच्या ओट्यावरून पडलेलं जरी असेल एक 80-90 वर्षापूर्वी, तर त्याला स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून लोक नाव देतात. किंवा म्हणजे अशा खूप उदाहरणं मी सांगू शकतो, गमतीशीर उदाहरणं आहेत. आणि त्यांची नोंद ही वेगवेगळ्या बाबीने केल्या जाते. अशा प्रकारचा डिस्कोर्स जो आहे तो काही विचारसरणीचे लोक मुद्दाम हे पसरवत असतात. कुणाला तरी म्हणजे खूप
वर मोठ्या ठिकाणी नेऊन ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये, एखाद्या पर्सनॅलिटीचं योगदान नसून सुद्धा, एखाद्या संघटनेचं योगदान नसून सुद्धा आम्ही स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेतला वगैरे वगैरे सारखे खोटे उदाहरणं देऊन आपल्याला या प्रकारचा डिस्कोर्स, या प्रकारचे चर्चा विश्व किंवा संवाद क्षेत्र याच प्रकारे एकाच प्रकारे निर्माण केलेलं दिसतं. पुढची जी संकल्पना आहे खूप महत्वाच्या आहेत त्या दोन्ही संकल्पना, की हिस्टोरिसिझम म्हणजे इतिहासवाद आणि न्यू हिस्टोरिसिझम म्हणजे नव इतिहासवाद. तर इतिहासवाद हा खरं म्हणजे एक, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, एका विशिष्ट स्थळ आणि काळ याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याचा अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न करतो. खरं म्हणजे एका प्रकारचं युनिव्हर्सलिझम, एका प्रकारचं एक ब्लँकेट टर्म आपण म्हणतो ना, की भारतामध्ये आर्य संस्कृती आली. खरं म्हणजे भारतामध्ये आलेली नसते, ती कुठेतरी वायव्य सरहद्दच्या पंजाब किंवा हरियाणा किंवा छोट्याशा सिंध एवढ्याच भागामध्ये आलेली असते. परंतु आपल्याला इतिहासामध्ये या प्रकारे शिकवलं जातं आणि कुठेतरी विद्यार्थी किंवा जे तरुण अभ्यासक असतात ते अशा प्रकारे इमॅजिन करतात की संपूर्ण भारतामध्ये रातोरात एका प्रकारची संस्कृती आलेली आहे किंवा कुणाचं योगदान असेल किंवा कुणाचं एका विशिष्ट प्रकारच्या वेळेचं योगदान असेल. म्हणजे आता टिळकांचं मी उदाहरण घेतो, लोकमान्य टिळकांचं उदाहरण. लोकमान्य टिळकांचं आपल्याला जे करिअर माहिती आहे ते अक्षरशः म्हणजे 1880च्या दशकापासून ते 1920 पर्यंत आहे. त्या पर्सनॅलिटी मध्ये प्रत्येक 10 वर्षाच्या त्या व्यक्तित्वामध्ये प्रत्यक्ष 10 वर्षामध्ये खूप मोठा फरक पडलेला दिसतो. म्हणजे जे सुरुवातीला ज्या प्रकारे एक कोकणस्थ ब्राह्मण, एक कोकणस्थ खोत म्हणून जे टिळक दिसतात किंवा ज्या प्रकारे ते फक्त राजकीयच स्वातंत्र्यावर भर देतात, तेच टिळक मंडाले मधून परत आल्यानंतर आपल्याला खूप मोठा फरक दिसतो. तेच टिळक म्हणजे अकबर उत्सव पण सुरू करतात. त्याच टिळकांना लोक म्हणजे क्रिटिसाइज करतात, टीका करतात की तेला तांबोळ्यांचा नेता झालेला आहे. तर एकाच व्यक्तीच्या जीवनामध्ये हे बदल फरक म्हणजे पडत असतात आणि ते बदल आपल्याला इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून आपण कोणत्या काळाबद्दल, त्या व्यक्तीच्या कोणत्या काळाबद्दल बोलत आहोत ही गोष्ट पण इथे अधोरेखित करणे खूप महत्वाचं आहे. गांधीजींचं उदाहरण घेऊ. आता गांधीजी ज्या पार्श्वभूमीतून, ज्या बॅकग्राऊंड मधून, जात वर्गच्या अनुषंगाने आले होते, त्यांना जात जाणीवा, या उच्च जात जाणीवा हिंदू धर्माच्या अंतर्गतच माहित होत्या. परंतु जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांबरोबर त्यांचा संबंध आला तेव्हा ते बऱ्यापैकी त्यांच्या म्हणजे मर्यादेत सहित त्यांनी प्रयत्न केला जात हा विषय हँडल करण्याचा. म्हणजे शेवटपर्यंत त्यांनी म्हणजे त्यांचे आणि बाबासाहेबांचे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर हे राहिलं, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, डिस्कशन्स राहिले, डिसएग्रीमेंट्स राहिले, वाद राहिले. परंतु आपण त्या व्यक्तित्वाच्या विचार हे 1915 पासून 1948 पर्यंत तसेच होते, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. हे मानणं म्हणजे त्या व्यक्तित्वाच्या त्या ऐतिहासिकतेचा अपमान करण्यासारखं आहे.
तर आपण अशा प्रकारे म्हणजे these people get mature themselves with their experiences. What they think in 20 may not be the same person thinking in 1942. इतिहासवाद आपल्याला हे सांगतो. आता नव इतिहासवाद आपल्याला काय सांगतो? नव इतिहासवाद हा मुख्यतः वाङ्मयावर, साहित्यावर विसंबून असतो. आणि नव इतिहासवाद येण्याच्या मागे सगळ्यात मोठं कारण आहे जे संशोधक झालेत, अंतोनियो ग्रॅम्शी सारखे किंवा अल्थुसर सारखे किंवा तुमचे रेमंड विल्यम्स सारखे, हे सगळेच जे संशोधक आहे, म्हणजे ज्याला आपण नव मार्क्सवादी इतिहासकार किंवा विचारवंत म्हणतो, ई.पी. थॉम्सन सारखे, हे सगळे जे विचारवंत आहेत, त्यांच्यामुळे आपल्याला म्हणजे लोककथा, लोकसंगीत, म्हणजे गाणे, कथा, कादंबऱ्या, हे सुद्धा स्रोत साधने, हे प्राथमिक स्रोत साधने झाली इतिहास लेखनाची. आणि त्या स्रोत साधनांवरून म्हणजे आपण जरी एखादी कथा, आताच अण्णाभाऊ साठेंची जन्मशताब्दी झाली आणि त्या अनुषंगाने म्हणजे चालू आहे त्याचं सेलिब्रेशन, त्या अनुषंगाने बरेच ठिकाणी सेमिनार झाले, लेख आले लिहून, तिथे आपल्याला ह्या गोष्टी या बघायला मिळतात की कशा प्रकारे एक प्रकारे इंटेलेक्च्युअल हिस्ट्री, बौद्धिक इतिहास हा त्या अण्णाभाऊ साठेंच्या वेगवेगळ्या कथांमधून, वेगवेगळ्या प्रसंगांमधून, वेगवेगळ्या जाती विशिष्ट अनुभव धिष्ठित प्रसंगांमधून इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न आपल्याला झालेला दिसतो. इथे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ती कोणत्या प्रकारचा कल्चरल कॉन्टॅक्स्ट, कोणत्या प्रकारचा सांस्कृतिक कोणत्या परिघामध्ये त्या जातीतले काइंड ऑफ पात्र किंवा त्यांचे दिवसा गणित असलेले ज्या प्रकारच्या समस्या असतील, ज्या प्रकारच्या डूज अँड डोंट्स मध्ये, म्हणजे ज्या प्रकारच्या वर्तन शिस्तीमध्ये ते वेगवेगळे कॅरेक्टर वागतात, म्हणजे त्या कथेमधला पाटील कसा वागतो किंवा डोंबारी कसा वागतो किंवा एखादी महिला, शेतमजूर महिला कशी वागते, हे वेगवेगळे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते त्यांचा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, त्यांचा सांस्कृतिक ज्या परिघामध्ये त्यांची मानसिकता, जाणीव आणि नेणीव, म्हणजे कॉन्शियसनेस आणि सबकॉन्शियसनेस, जाणीव आणि नेणीवेनुसार ज्या प्रकारे ते प्रतिक्रिया देतात, त्या प्रतिक्रिया या इतिहास लेखनामध्ये खूप महत्वाच्या ठरतात. कारण इतिहासामध्ये तुमच्या ज्या प्रकारच्या प्रोसेसेस आपण अभ्यास करतो, ज्या प्रकारच्या प्रक्रिया आपण अभ्यास करतो, त्या प्रक्रियांमध्ये तुमचं सबकॉन्शियसनेस, नेणीवेमध्ये कोणकोणत्या अनुभव, कोणकोणत्या बाबी घडलेल्या आहेत, या बाबी पण इथे महत्वाच्या ठरतात. पुढचा मुद्दा आहे कल्चरल मटेरियलिझम. कल्चरल मटेरियलिझम हा मुख्यतः ही जी बाब आहे ती रेमंड विल्यम्स यांनी खूप चांगल्या प्रकारे डिस्कस केलेली आहे की प्रत्येक सांस्कृतिक घटका आणि उपघटकाच्या या पूर्णपणे वैश्विक किंवा जीवन दृष्टी कशा प्रकारे विकसित झालेली असते आणि त्यानुसार ते त्यांच्या ठिकाणाहून बाहेरच्या जगाकडे कसे बघत असतात, या दृष्टीलाच आपण कल्चरल मटेरियलिझम म्हणतो. म्हणजे काय होतं, म्हणजे प्रॉब्लेम कुठे होतो की मी एका विशिष्ट शहरातला, मी एका विशिष्ट जातीतला, एका विशिष्ट म्हणजे वर्गातला स्टुडंट असेल किंवा असोसिएट प्रोफेसर असेल, माझ्या या सगळ्या प्रकारच्या वर्ग, स्थळ, निहाय जाणीवा या माझ्या संशोधनावर बऱ्यापैकी प्रभाव टाकत असतात आणि आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या समस्या या त्या वेगवेगळ्या घटकाच्या किंवा ज्यावर
ज्या समाज घटकांवर, वर्गांवर, प्रवर्गांवर आपण अभ्यास करत आहोत, त्या वर्गाच्या समस्या त्याच वाटतात. त्याच्यामुळे आपल्याला रियालिटी, वास्तवाच्या बरोबर अतिशय निकट जाता येत नाही. हा सगळा दुरावा मिटवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी कल्चरल मटेरियलिझम नावाची कन्सेप्ट किंवा नावाचं अन्वेषण आपल्याला महत्वाचं ठरतं. पॉवर रिलेशन्स, सत्ता संबंध जे असतात समाजामध्ये, त्या प्रकारे मी त्याचं अजून पुढे त्याचं विशदीकरण करेल. नंतर जसं मी आधी पण सांगितलं की बऱ्याच वेळेला मी माझ्या तरी स्टुडंटला सवय लावतो की तुमच्या संशोधनामध्ये जे जे घटक येतात, जे जे व्यक्तित्व दिसतात, त्या व्यक्तित्वांना त्यांच्या त्यांच्या समस्यांच्या किंवा अनुभवांच्या, वर्गाच्या, स्थळाच्या नुसार वेगवेगळ्या वर्ग आणि प्रवर्गामध्ये त्याची विभागणी करा. म्हणजे स्त्री ही एक मोनोलिथिक कॅटेगरी नाही होऊ शकत. स्त्री ही वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये, वेगवेगळ्या जातींमध्ये तिची प्रतिमा ही अशी वेगवेगळ्या प्रकारे अशी विभागलेली असते. आणि त्याच्यामुळे आपण तिची ती प्रतिमा ही तिच्या ठिकाणी जाऊन, म्हणजे शेतमजूर, मग शेतमजूर कुणबी जर बाई असेल, तिचं शोषण, शेतमजूर ही म्हणजे मांग, चांभार किंवा महार बाई असेल, तिचं शोषण, त्या दोघांचं शोषण होतं. परंतु शोषणाची ज्या प्रकारे आपल्याला नेचर, स्वरूप जे असतं ते दोघं जातीनिहाय किंवा त्यांच्या स्थळ वर्ग निहाय हे वेगवेगळ्या स्वरूपाचं आपल्याला दिसतं. इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून ते ओळखणं, ते आपल्याला माहित करून घेणं फार गरजेचं कॉल येत आहे, त्याला बोलता त्यानुसार कॉल येत आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला कंटेक्स्च्युअलायझेशन, म्हणजे आपल्या जर त्या छोट्याशा गावाबद्दल, आपण बीड बद्दल आपण इतिहास लेखन करत आहोत, पण बीड मध्ये जे होत आहे त्याच्यावर मोठमोठ्या, म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या आणि जगाच्या या वेगवेगळ्या स्तरांवर झालेल्या घटनांचा किंवा विचार प्रक्रियांचा काय परिणाम होतो आहे ते पण बघणं, कंटेक्स्च्युअलाइज करणं पण आपल्याला महत्वाचं ठरतं. अशा प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या आपल्या विषयानुसार वेगवेगळ्या सोशल आयडेंटिटीज पण, सोशल कॅटेगरीज पण आपल्याला तयार करता येतात. पुढची माझी स्लाइड आहे सोशिओमेट्री, म्हणजे मराठीमध्ये ज्याला आपण समाजमिती म्हणतो, की आपला जे संशोधन हे खरं म्हणजे जुना प्रकार आहे, परंतु फार कमी लोक आपल्या संशोधनामध्ये मांडतात, म्हणून मी इथे त्याचा एक मुद्दा म्हणून उपस्थित केलेला आहे. की संशोधनामध्ये वेगवेगळे जे आपले पात्र किंवा समूह किंवा समाज घटक असे येतात, या पात्रांची, त्या समूहांची आणि त्या सगळ्या ऍक्टर्सची आपल्याला एक प्रकारे एकामेकांच्या संबंधांच्या अनुसार एक डायग्राम, एक प्रकारचं आकृती काढायची असते. आणि मग आपण ठरवतो की कोणत्या सत्ता संबंधांमध्ये हे सगळे घटक, हे सगळे पात्र अडकलेले आहेत आणि कशावर, कुणाचा कशावर कशाचा परिणाम होतो. त्याच्यामध्ये जात, लिंग, भाव असतो, धर्माचा सत्ता असते, संपत्तीची सत्ता असते, कुठे प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठेची सत्ता असते, एक वर्गानुसार किंवा एका प्रकारे तुमच्या पदानुसार, गावचा पाटील, कुलकर्णी किंवा तहसीलदार किंवा फॉरेस्ट ऑफिसर, या सत्तेच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या समाजमितीमध्ये, सोशिओमेट्रीमध्ये आपल्याला त्यांचे संबंध हे रेखून आखायचे असतात. आणि तेव्हा आपल्याला समजतं की निर्णय प्रक्रियेमध्ये किंवा घटना बदलण्यामध्ये कोणाची सत्ता किंवा कोणाचा विचार, कोणाचा डिस्कोर्स हा तिथे कामी येतो. या प्रकारे आपल्याला, म्हणजे आपल्या
जर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास लिहित असू तर अभिजन वर्ग किंवा जे डिसिजन मेकिंग निर्णय प्रक्रियेमध्ये असलेले वर्ग आणि सबऑर्डरन किंवा उपेक्षित यांच्यामधलं जे बायनरी अपोजिशन आहे, एक टेक अँड गिव्ह आहे किंवा एक लव्ह अँड हेट रिलेशनशिप आहे की दोघं एकामेकांना राहू शकत नाही. लव्ह आणि हेट रिलेशनशिप जी आहे त्याचा कशा प्रकारे काय म्हणता येईल त्याला समतोल किंवा बॅलन्स हा कुठे कुठे कसा कसा सरकत असतो त्याचा पण इथे आपल्या ऐतिहासिक संशोधनामध्ये उल्लेख होणं गरजेचं आहे. नंतरचा मुद्दा मला महत्वाचा वाटतो की एक्सपिरियन्शियल अँड स्पॅशियल, म्हणजे प्रत्येक समाज घटकाचा स्वतःचा अनुभवाधिष्ठित ज्या प्रकारचा काय म्हणतात जाणीव तयार झालेली असते त्यानुसारच त्याचे वेगवेगळे प्रकारच्या प्रतिक्रिया या उमटत असतात. आता म्हणजे अण्णाभाऊ साठेंच्या याच्यामध्ये त्यांच्या बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांच्या कथेंमध्ये उल्लेख येतो, मंटोच्या कथेंमध्ये उल्लेख येतो की मंटोच्या कथेमध्ये पार्टिशन नंतर ज्या प्रकारे स्त्रियांवर आणि मुख्यतः स्त्रियांवर आणि गरीब लोकांवर दलितांवर ज्या प्रकारचे मोठ्या प्रमाणामध्ये अत्याचार झाले त्याचा इतिहास फार कमी लोकांनी मांडलेला दिसतो. आता उर्वशी भुटालिया यांचं पुस्तक अदर साइड ऑफ द सायलेन्स, पेंग्विन प्रकाशन, हे तुम्हाला माहित असेल. अदर साइड ऑफ सायलेन्स मध्ये उर्वशी भुटालिया यांनी सगळ्याच त्यांना ज्या भेटतील भारत आणि पाकिस्तान मध्ये म्हाताऱ्या पंजाबी स्त्रियांच्या इंटरव्ह्यूज घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं की कशा प्रकारे म्हणजे आपल्याला पार्टिशन जर आपण आठवला आणि ज्या प्रकारे आपण शिकलेलो आहोत आपल्याला फक्त गांधी, जिना, नेहरू, पटेल हेच आठवतात, पण हे झालं पॉलिटिकल डिसिजन मेकिंग आणि पार्टिशन. परंतु एक मास लेवलच्या एक सामान्य जनमानसाच्या स्तरावर कशा प्रकारे इथे इतिहास लिहिला गेला याचं उदाहरण जर आपण बघायचं ठरलं तर उर्वशी भुटालिया यांचं अदर साइड ऑफ सायलेन्स हे पेंग्विन प्रकाशनाचं पुस्तक तुम्ही वाचलं तर लक्षात येईल. आणि मग आपल्याला लक्षात येतं की कशा प्रकारे एक स्त्रीनिहाय किंवा जातीनिहाय इथे इतिहासाचे वेगवेगळे आपल्याला अनुभव हे बघायला मिळतात आणि व्हेरी मच अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ सोशो कल्चरल हिस्ट्री किंवा काइंड ऑफ विमेन्स हिस्ट्री अस सच. मंटोच्या, खुशवंत सिंगच्या किंवा तुमचे भीष्म सहानी ज्यांनी तमस लिहिलं त्यांच्या बऱ्याचशा कथांमध्ये किंवा तुमचे अमृता प्रीतम यांच्या कथांमध्ये आपल्याला हे स्त्री अनुभव हे पार्टिशनच्या अनुषंगाने चांगले बघायला मिळते. हेगेमनी किंवा हेजेमनी ही संकल्पना आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल, परंतु त्याचं अतिशय साधं बरेचसे आपले मित्र भाषांतर करतात की प्रभुत्व, वर्चस्व. हेजेमनीचं फक्त प्रभुत्व किंवा वर्चस्व एवढंच भाषांतर होत नाही, त्याचं भाषांतर सर्वंकष प्रभुत्व किंवा सर्वंकष वर्चस्व. आता सर्वंकष याचा अर्थ आपण कसा घेतो की ज्या सामाजिक वर्गावर किंवा प्रवर्गावर स्त्री असेल किंवा दलित असतील किंवा कामगार असेल किंवा आदिवासी असेल, कोणत्याही वर्गावर ज्या प्रकारे वर्चस्व गाजवलं जातं किंवा वर्चस्व प्रस्थापित केलं जातं त्याच्यामध्ये फक्त मसल पॉवर वापरत नाही, त्याच्यामध्ये फक्त म्हणजे स्नायू शक्ती वापरत नाही, तर अशा प्रकारचं डिस्कोर्स, अशा प्रकारचं मानसिकता निर्माण केल्या जाते की ज्याच्यावर प्रभुत्व प्रस्थापित केलेलं आहे तोच व्यक्ती, तेच व्यक्तित्व हे अभिमानाने सांगतं की माझ्यावर याचं प्रभुत्व आहे. अशा प्रकारे त्या प्रभुत्वाच्या, त्या संपूर्ण प्रभुत्वमय व्यवस्थेचा एक वाहक म्हणूनच ती व्यक्ती ती काइंड ऑफ आयडेंटिटी काम करायला लागते.
म्हणजे मी नेहमी ते उदाहरण देतो की म्हणजे स्त्रियांचं शोषण करताना बऱ्याच वेळेला सासू पण मदत करते, कारण सासूला स्वतःसाठी काय पाहिजे नसतं. ती एक पितृसत्ताक पद्धतीची वाहक म्हणून काम करते. ती म्हणते की माझ्या मुलाला गाडी घ्यायची आहे, माझ्या मुलाला बंगला घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे तुझ्या आई वडिलांकडून पैसे माग. ती एक वाहक म्हणून, एक कस्टोडियन म्हणून, ही पण एक कन्सेप्ट आहे, एजन्सी आणि कस्टोडियन. ती एक कस्टोडियन म्हणून, एजन्सी म्हणून, त्या व्यवस्थेचं वाहक म्हणून ती काम करत असते. आवाज येतो आहे, मला तर वाटतं बाईक बंद करा सगळे. आयोजकांनी प्लीज सांगावं मी कधी थांबावं. ओके, येस सर. मी कंटिन्यू करू. पार्टिसिपंट्सला विनंती आहे की माईक अनम्यूट करावा. हॅलो, हा सर. हा मी कंटिन्यू करू का? Sir, all participants are committed from all over India. They can't understood Marathi language. Okay, then I'll speak in English. Yeah, all, actually. all participants are requested to You. Okay, I'll speak. Dr. See, Gaikwad sir, this- please continue. Sure. So I was speaking about the hegemony. What I was explaining, that hegemony is not the naked power which could be established by muscle power. Hegemony is the power which on the minds of the people role, and the person on which the power is established, that person itself takes pride that I have been. So in this relationship of power relation, the concept of custodian and the concept of agency is very important, because that particular agency and custodian person takes a part of execution of power. Mother-in-law, after being a woman also, she becomes part and parcel of the executing kind of atrocities on daughter-in-law. She always asks daughter-in-law to get money as a dowry, because for herself she doesn't to buy, because her son told her, her husband told her, wants to buy a car or a bungalow or something like that. Dowry. There she behaves, system that I was explaining of hegemony. And there she, and any kind of British rule to any kind of category which executes power, they always use these two kind of things: coercion and consent. They didn't only use their military power, but they adopted, they co-opted the upper class and upper caste of the Indian society, and then they through them executed, delegated the power to the rest of Indians as such. So this is very important thing which you understood from Antonio Gramsci. Antonio Gramsci comes up with the next concept like common sense as well. Common sense is very important concept, friends, because common sense is collectively shared by the family, collectively shared by the community, the gamut of experiences, and due to that gamut of experiences, that spontaneous reaction of that community, spontaneous reaction of that particular social category matters a lot. See, we have been studying, I am giving you some example. We have been studying tribal movement. So what happens in the tribal movement, that they become so kind of exploited and harassed, suppressed, that they collectively spontaneously react against the symbols of powers.
For example, they react against the local forest officer, or they react any representative of the government, because through that construction, through that structure, any building, they understand that is the symbol of power. And there that common sense works a lot. Their brotherhood and sisterhood, the concept comes very very important. What Ram Chandra Guha has used, Ranjit Guha, Ramchandra Guha, Ranjit Guha has used in his article that during British time, in a particular princely state or in British India, the very young unmarried girl who gets pregnant, she couldn't get aborted in the British India due to rules and regulations. She migrates to the nearby princely state, and then she gets aborted herself, and she was spontaneously helped by a number of women. Afterwards, the court case stands against these all women as murderer. There the element of sisterhood becomes very important to analyze the whole story. So these all most of these concepts are given by these recently have come in our historical research. Then I come to the next point, that is the historical block. That is also very important, because this block is a kind of our historical sediment, historical deposition, the way we imagine ourselves vis-a-vis the other. So my identity formation in my psyche, in my mental image, how I imagine myself, the imageries I make about myself, it is always in my kind of making of images is always related to the other people as such. And actually, for me, that historical block is shared, created particular values and particular theories. That is been explained at length by a number of scholars. I don't want to go into details because there is no time. I just wanted to provoke you about some concepts which I'm going to discuss. Then the element of consciousness and subaltern consciousness is also on a big way has been discussed by right from Partho Chatterjee to till the time. Number of people. Dipesh Chakravarti also has discussed this subaltern consciousness. It is also the same element that subaltern consciousness is always on two levels. They say that the way Dalits or subaltern class think of themselves, the way woman think about herself, and in her private life, in her private ghetto, how she reacts, and how the consciousness has been imposed on her or on subaltern class. These are the two levels of the consciousness which make the subaltern consciousness, and in and out, it always comes on the surface. And here, Dr. Babasaheb Ambedkar wanted to change this subaltern consciousness. According to him, the consciousness which was embedded, which was imposed on women and Dalit people was like, you are non-person, dirty people, you don't have history, you can't wear good clothes, you can't wear, you can't have property. So always you are at the receiving end. So that kind of very king size inferiority complex was gained by these people, and Dr. B.R. Ambedkar, Periyar, and other reformers, they want to undo, they want to dislodge that kind of inferiority complex and wanted to inject, inculcate, kind of the consciousness which will
teach us to take pride. So that is the subaltern consciousness which was dealt by right from Dr. B.R. Ambedkar to a number of scholars have dealt with this subaltern consciousness. Then class. This concept is also very important. Class is not only, a kind of rulers and ruled, or mill owner and workers, or a kind of a jamindar or landowner and land laborers. Class is not only that, but class always, according to E.P. Thompson. E.P. Thompson has developed this concept very well. E.P. Thompson says the very reaction and behavioral pattern of class is relative to the location. Means the way worker in Mumbai reacts, not in the same way worker from Patna or worker from Aurangabad or worker from Delhi react. Because the local politics, local psyche, local kind of power relations always have been, kind of dictate terms to his or her reaction. So the location, event, time, ecological setting, all these factors matter a lot as far as class consciousness is also concerned. Function and indices, you must be knowing, is purely on linguistic basis done by Ranajit Guha. He says that number of times it so happened that whatever names, whatever titles, whatever nomenclatures, whatever points and subpoints we collect from archives, in the same way we use in our own research. It shouldn't happen. What happens that if somebody, British government was calling rebellion, if somebody they were calling criminal, in our own history writing, why should we use the same word? Because these people were criminal from the viewpoint of British, and then we'll have to change their identity. We'll have to understand from their location, their cultural location viewpoint, and that's how we can go close to the reality, the consciousness as such. Then intertextuality, signified, that you must be knowing that all your texts, all your am I audible? Am I audible? Yes, sir. Oh, extremely sorry that by mistake I actually attended one call, and because of that the live session was interrupted. I am extremely sorry for that. So I was talking about that, how that the tribes have been portrayed by the so-called the travelers and the missionaries. They wrote about like the civilized, uncivilized kind of the people, the tribals of the India. They were the wild tribes of the India. The kinds of the terminologies, the derogatory terminologies were also used for these kind of the people. उन लोगों ने उनके बारे में कहा कि ये लोग कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं, ये कम कपड़े पहनने वाले लोग हैं, ये सैवेज है। इस प्रकार का जो है बहुत सारा वर्ड्स उन लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन इस प्रकार का रेखांकन करते समय में इन लोगों ने उनके भाषा और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा। इतना ही नहीं तो ट्राइब्स के बारे में जब शुरुआती तौर पर इन लोगों ने लिखा, उस समय में उनके जमीन के बारे में या उनके वन के उपयोग के बारे में किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलती। और शायद यही वो एक कारण है जिसके कारण उनके वन उपयोग या फिर उनके जो है लैंड उपयोग के बारे में आज भी हम लोग अनभिज्ञ है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि एक सांस्कृतिक पिछड़ापन का जो है उनके ऊपर में जो लेबल चिपकाया गया, जो आज भी नहीं जा रहा है हम लोगों से, और आज हम लोग खुद भी भूल रहे हैं कि सच में हम लोगों ने आदिवासी किसको कहना चाहिए या हम लोगों ने जो है ट्राइब्स किसको कहना चाहिए।
इस प्रकार के शब्दों के बीच में आज भी हम लोग कंफ्यूज्ड है बुरी तरह से, क्योंकि आज भी हम लोग जो है इस वर्ग का पहचान ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अस्मिता को हम लोग जो है बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हैं। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज क्लियर होने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम लोगों की आइडिया उसके बारे में क्लियर हो जाएगी। इसलिए कई सारे लोगों ने, ये जितने भी यूरोपियन लोग यहाँ पर आए थे, इन लोगों की ये सोच थी कि ये आदिवासियों को जो है ये लोग पिछड़े और इसलिए इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब ये मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम मुख्य धारा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मेरी समझ के हिसाब से मुख्य धारा तो ट्राइब्स ही है, और बाकी जितने भी शाखाएं फैली हुई है वो आज की जो सभ्यता हम लोग देख रहे हैं, आज का जो विकास देख रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ होगी। नेचुरली ये जड़ जो है ट्राइब से आता है। तो मुख्य धारा में कौन थे वो उसका डेफिनेशन मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों ने जो है ट्राइब्स के तरफ में देखते समय उनके बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो है उस समय में थे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बोलने के लिए कई सारे जो लोग हैं विद्वान डरते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में। ये क्या चीज होता है? ये तो बड़ा गंदा चीज है। ये इस प्रकार का कैसा, ये तो अनकल्चर्ड है। एग्जैक्टली मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों करते थे वो भी। उसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसके बारे में भी, उसके ऊपर में भी पाबंदी लगा दी। यानी आपने हर चीज जो है जिसके ऊपर में उनका लाइवलीहुड जिंदा था वो रास्ते आप धीरे धीरे जो है बंद करना शुरू हो जाता है। कॉलोनियल पीरियड में ये बहुत सारी चीजें जो है बाद में आते हैं, कानूनी तौर पर उनके ऊपर में प्रतिबंध लगता है। आदिवासियों के ऊपर में शस्त्रबंदी लागू की जाती है। शस्त्रबंदी करोगे तो वो शिकार कैसे करेगा? शिकार नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? आप लोग उसको बोलोगे कि जंगल में मत जाओ, जिसकी अर्थव्यवस्था ही जो है जंगल के साथ में जुड़ी हुई थी, जल के साथ में जुड़ी हुई थी, जमीन के साथ में जुड़ी हुई थी। उस इंसान को वहां पर जाने के लिए आप जब प्रतिबंध लगाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेगा? इस प्रकार का बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और इसीलिए जो कुछ भी शुरुआती तौर पर जो ट्राइब्स के बारे में लिखा गया था उसमें उनके बारे में जो सीक्रेट उनकी जो बातें हैं या उनका जो भी जीवन है उसको बड़ा ही रोमांटिक यानी रोमानी तौर पर जो है उसको लिखा गया। या हम लोग कहेंगे कि उनकी जो भी कथाएं हैं उनको जो है पढ़ने वाले यहाँ पर नहीं होते थे, क्योंकि उस समय में पब्लिकेशंस भी यहाँ पर नहीं होते थे। वो तो आयरलैंड में, ब्रिटेन में कहीं छपते थे, क्योंकि वहां पर ये सब्जेक्ट डेवलप हुए थे। एंथ्रोपोलॉजिकल, इथनोग्राफिकल ये सब्जेक्ट भारत में पैदा नहीं हुए थे और इसलिए उस प्रकार की जानकारी यहाँ छापी भी नहीं जाती थी। ये सारी जानकारी यूरोप में लोग जो है पढ़ते थे। और यूरोप के लोग क्यों पढ़ते थे? उनको तो टाइम पास करने के लिए चाहिए था। एक उनकी जो भी कॉलोनी जहाँ जहाँ हुआ करती थी वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं, वो क्या खाते हैं, तो ये एक जो सेंसेशन तैयार करने का काम जो है ये शुरुआती तौर का लिटरेचर करता हुआ है। और इसीलिए जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो बैगा लोग जो होते हैं मध्य प्रदेश वाले, ये लोग टाइगर हंटिंग कैसे करते थे ये स्टोरीज उनके जर्नल्स में आते थे। खून लोगों के द्वारा शिकार किस प्रकार से किया जाता है वो लिखा जाता था। मारियाओं के द्वारा जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस कैसे किया जाता है उसके बारे में जो है लिटरेचर उस समय में छापा जाता था। और इस प्रकार से इन सब चीजों के अलावा उस समय में भाषा और संस्कृति के तरफ में जो है जो कुछ भी है वो जो है कम ध्यान दिया गया। और उनके बारे में जो इस प्रकार की कथा है, भ्रम फैलाने का काम जो है कॉलोनियल लिटरेचर में हम लोगों को बहुत बार दिखाई देता है। उसके बाद में हम लोगों को ये समझ में आता है कि धीरे धीरे ये जो अंग्रेज लोग हैं या कॉलोनियल पीरियड के जो राइटर्स हैं, इन लोगों ने उनका बल्कनाइजेशन करना शुरू कर दिया। बल्कनाइजेशन का मतलब है, हाँ वो ये खोंड है, वो गोंड है, वो प्रधान है, वो मुरिया है, वो मारिया है, इस प्रकार का। सो कॉल्ड हमारे जो के सिंह है ये सबसे बड़े उसके प्रवर्तक है जिन्होंने बल्कनाइजेशन कर दिया कि ट्राइब्स को एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े के बीच में उसको बांट दिया। और ये इस प्रकार से जो है उनको बांट दिया हुआ है कि आज उनका जुड़ना मुश्किल हो रहा है। अब ये सब लोग एक थे, ये किस आधार पर हम लोग कहेंगे? इनकी ओरिजिन स्टोरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को लिंगो और जो भी उन लोगों का ओरिजिन है वो एक ही गॉड दिखता है। उन लोगों की जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, जब एक है तो ये लोग अलग अलग कैसे होते हैं? तो इस प्रकार से जब हम लोग उनकी ओरिजिन स्टोरीज पढ़ते हैं तो जो लोक कथाओं के आधार पर, दंत कथाओं के आधार पर हम लोग जब उनका लिटरेचर ढूंढते हैं तो हम लोगों को वो लोग जो समझ में आते हैं जो इन लोगों को समझ में नहीं आए। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो जितनी जिस प्रकार से प्राचीन और मध्यकालीन काल में जो जिस प्रकार के उपहासात्मक उनके बारे में जो लिटरेचर लिखा गया, इसी से ये समझ में आता है कि ये लोग बाहरी लोग थे जिनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। यही अंग्रेजों के समय में हुआ। रामायण महाभारत के काल में अगर ये हुआ है कि लोग जो बाहरी लोग रहे होंगे उन लोगों ने उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो किया हुआ है, क्योंकि
जिनके बारे में आप लोगों की सही सटीक जानकारी है, उनके लिए आप लोग ये दुष्ट, लुटारू, राक्षस, नरभक्षक इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिश जो बाहर से लोग आए थे, इन लोगों ने भी जो है भारतीय आदिवासियों के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, उसमें प्रिमिटिव, तो वो क्या बैकवर्ड, इस प्रकार के जो है बहुत सारे नामावली इन लोगों ने दी हुई है। उसके आगे में भी जब हम लोग जाते हैं, जैसे 1925 और 1947 के बीच का ये जो सेकंड फेज ऑफ द कॉलोनियल पीरियड हम लोग इसको कह सकते हैं, तो इधर जो है ट्राइबल सोसाइटी के बारे में लिखने की जो परंपरा है वो थोड़ी बदल जाती है। यहाँ सबसे पहले इन लोगों के दिमाग में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ट्राइब्स कौन है, ये विवाद चालू हो जाता है। इवन आदिवासी शब्द का जन्म जो हम लोग कहते हैं, ये भी वो ठक्कर बाबा, महात्मा गांधी जी और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोई पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके माध्यम से ये शब्द का जो है कॉइन किया गया था 1925 की तरफ में। और ये आदिवासी शब्द हम लोग जो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्राइब्स के लिए, वो भी टेक्निकली सही नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस शब्द का जन्म जो है बहुत अभी हुआ है। जैसे अगर इनके शब्दों की अगर हम लोग उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, 1871 का जो सेंसस सबसे पहले जो तैयार किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, उसमें एबोरिजिनल ट्राइब्स नाम का इस्तेमाल किया गया था या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। 1881 के बाद में वो फिर बदल जाता है, उसमें उन लोगों ने जो है जंप किया हुआ है, एबोरिजिनल शब्द रखा और इनहेबिटेंट्स को उन लोगों ने हटा दिया। 1891 का जो सेंसस है, उसमें उन लोगों ने एनिमेस्टिक, प्रिमिटिव, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। और 1941 के बाद में जो है वो ट्राइब शब्द की उत्पत्ति होती है, और यही जो है एक समय है कि जब जो है वो आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया हुआ है। आदिवासी शब्द का ओरिजिन जो है वो ट्राइब्स में नहीं है, दैट कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड, जिसका मतलब जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं होता, आदि से निवास करने वाला। लेकिन कब से, उसका कोई डिमार्केशन हम लोगों के पास में नहीं है। अब कॉलोनियल पीरियड से है या महाभारत पीरियड से है या मध्ययुगीन समय से है, कौन से पीरियड से आदिवासी, इस प्रकार का बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है उस शब्द ने तैयार किया हुआ है। और इसीलिए ट्राइब्स जो है इस प्रकार के शब्द का आज भी जो है स्वागत नहीं करते, और इस प्रकार से हम लोग इस शब्द को छोड़ देते, आगे हम लोग बढ़ते। तो मैं बता रहा था कि ये जो एक पीरियड था 1925-1947 के बाद वाला, इसमें जो है दो प्रकार के प्रवाह जो है आदिवासी इतिहास लिखने में आते हैं। जिसमें एक जो प्रवाह था जो उनको सैवेज कहता है, जो उनको वाइल्ड कहता है, जो उनको प्रिमिटिव कहता है। लेकिन दूसरा एक प्रवाह उसी समय में तैयार हुआ था जो इनको काउंटर करते जा रहा था, और वो कह रहा है कि ये लोग सभ्य है, इनकी संस्कृति अच्छा है, ये भला समाज है। इस प्रकार का जो है एक दूसरे को काउंटर करने वाले जो है विचारधाराओं का प्रवाह 1927 के बीच में आ रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो डब्ल्यू.बी. ग्रिग्सन है, विलियम आर्चर, एल्विन है, ये वो लोग थे जिन लोगों ने आदिवासियों के ऊपर में जो है मोनोग्राफ्स लिखे हुए हैं, जो आज भी प्रचलित है और वो मानक समझे जाते हैं, और इससे जो है ट्राइबल हिस्ट्री को बहुत सारे लोग करते हैं। क्योंकि ये डब्ल्यू.बी. ग्रिग्सन, विलियम आर्चर और विलियम एल्विन का लिटरेचर बहुत ज्यादा है, जहां सबसे पहले जो है आदिवासी को नैतिक रूप से जो है धनी बताया गया, सांस्कृतिक रूप से उनको संपन्न बताया गया। इस प्रकार का ये जो है समय हम लोग देखते हैं। आगे घुरिये आते हैं। ये घुरिये जो है ये कृषक समाज से इनका संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी ट्राइबल्स जो है उनको कृषक समाज के साथ में जोड़ने का कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से वो उनको अलग नहीं बोलते, वो एक ही है। इसी सिस्टम के लोग इस प्रकार की बात को रखने की कोशिश। और ये जो है आजादी के समय तक इसी प्रकार के मुद्दे, इसी प्रकार के डिबेट जो है चलते रहता है, और उसके बाद ये भी विचार किया जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होगा, आजादी के बाद में इन लोगों का किस प्रकार का भविष्य होगा, ये डिबेट उस समय में चलता है। बृहत नेशनल स्टेट के साथ में उनका संबंध किस प्रकार का रहेगा, ये चिंता जो है विचारधारकों के सामने में आती है। इवन एकेडमिक लिखानों में और रियल पॉलिटिक्स में उनका किस तरह का जो है बखान किया जाएगा, उनके बारे में क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार का डिबेट उस समय में चलता है। और इतना ही नहीं तो विकास प्रक्रिया में ट्राइब्स को किस प्रकार का स्पेस दिया जाएगा, 1947 के बाद में इस प्रकार की चर्चाएं जो है उस समय में चलती है। तो ये जो 1947 के बाद में हम लोग जब देखते हैं, जो एक नेहरूवियन पैराडाइम में हम लोग जब ट्राइब्स को पढ़ते हैं, उस समय में और कंसेप्ट बहुत सारा बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग
1950 ऑनवर्ड्स अगर देखते हैं तो संविधान जो एक सुरक्षा कवच ट्राइब्स को दिया गया ऐसा हम लोग मानते हैं, और वो बिल्कुल सही संवैधानिक सुरक्षा उनको प्रदान की। लेकिन इसमें एक सबसे पहली बात ये हुई कि आदिवासी आर्थिक जीवन पद्धति को, और जैसे कि उपनिवेशिक सरकार ने जिस तरह से खत्म किया हुआ उसके प्रकार से आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हम लोगों को दिखाई देता है कि आदिवासियों की आर्थिक जीवन पद्धति को हम लोगों ने नकार दिया था। इसके कारण बहुत बड़ी समस्याएं धीरे धीरे सामने दिखाई दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ अगर यहाँ पर देखें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य भारत के जो आदिवासी लोग थे, ये मध्य भारत के आदिवासी लोग जो है ये अपने आप को जो है आदिवासी कहते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो आदिवासी थे उन लोगों ने उस समय में ऑटोनॉमी की मांग कर दिया, और उसी से बहुत सारे अभी भी जो प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट में चालू है तो वो लोग ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं। और ये मध्य भारत के आदिवासी अपने आप को जो है आदिवासी कहलवाने के लिए जो है प्रयत्न कर रहे थे, और इसमें मैसनिक मूवमेंट्स भी चलते हैं। तो पर्टिकुलरली मध्य भारत में बहुत सारे जो कमला माजी का मूवमेंट है या फिर गोंडों का है, बहुत सारे लोगों के मूवमेंट्स हैं। नतीजा ये हुआ कि जब संविधान की प्रक्रिया चालू थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने में बहुत सारे सवाल आए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने में या संविधान समिति के सामने में ये सवाल पैदा हुए थे कि इन लोगों की पहचान, इन लोगों की आइडेंटिटी हम लोग संविधान में क्या रखें। और इसलिए जो है वो जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके बीच में बहुत सारे डिबेट्स जो है पार्लियामेंट्री डिबेट्स में आज भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी शब्द के ऊपर में सहमति बनी, लेकिन उसको पूरी तरह से जो है स्वीकार नहीं किया गया, और जिसके कारण वो शब्द से हटाया गया था। शेड्यूल ट्राइब इस प्रकार का शब्द उसके लिए ज्यादा अच्छा माना गया, या फिर जो है अप्रोप्रिएट उसको माना गया, इस प्रकार का हम लोग देखते हैं। तो जो भी सब कमिटी तैयार की गई थी जो आदिवासी प्रश्नों के ऊपर में बात करने वाली थी, उन लोगों ने उनको उस प्रकार से स्थान भी दिया। संविधान के जो 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां के जो भी आदिवासी थे उन लोगों के लिए जो है कुछ राइट्स रखे गए हैं जो आज भी अलग अलग कानून के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। और इस प्रकार के क्षेत्रों को जो है वो एक शेड्यूल एरियाज उनको जो है कहा गया था। इस प्रकार से नए डिबेट जो है चालू हो जाते हैं 1947 के बाद में। तो ये डिबेट क्या थे? ये डिबेट ये इस प्रकार के थे कि संवैधानिक सुरक्षा तो उनको दी गई, लेकिन उसके ऊपर में फिर से जो है डिबेट चालू हो गया। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये औपनिवेशिक मानसिकता है जो आदिवासियों को जो है अलग मानती है, उन लोगों को जो है शेड्यूल एरियाज में रखने की बात कर रही है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के माध्यम से उनको जो है सुरक्षा दी गई है। ये तो वही मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली कॉलोनियल माइंडसेट है इस प्रकार का एक उस समय। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस प्रकार से अगर आदिवासियों को हम लोग अलग कर देते हैं, उनके लिए अलग सुरक्षा कवच की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उससे जो है राष्ट्रीय हित को प्रॉब्लम हो जाएगा, नेशनलिटी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, नेशनलिटी को जो है वो आहत हो जाएगा इस प्रकार। उसके अलावा कुछ और भी लोग थे जो ट्राइब के अधिकारों की बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये एक शोषित समाज है, एक्सप्लॉयटेशन इसका भी हुआ है, इनके अधिकारों से इनको वंचित करना ठीक नहीं है, उनकी अस्मिता या है, तो उसके लिए संवैधानिक सुरक्षा देना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी बात कहने वाले लोग बहुत सारे थे। इसी के आधार पर एक और चौथा डायमेंशन जो आता है, और जिसमें पंचशील के जो नेहरू के जो पंचशील आते हैं उसमें भी ये जिक्र आता है कि किसी की संस्कृति और उसके जो भी मूल्य है उनका जतन और संवर्धन करना जरूरी है, सम्मान करना जरूरी है। इस प्रकार का प्रभाव हम लोगों को वहां पर भी दिखाई देता है। और इसके साथ ही जो है ये भी एक और डायमेंशन आया था कि जो है आदिवासी समाज इस प्रकार से दूर करे, क्योंकि हम लोग देश को अगर आधुनिकता की तरफ में अगर हम लोगों को लेके जाना है तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार का दिशा निर्देशन करेंगे, ये भी चीज जो है उस समय में सोची गई थी, और इससे भी प्रॉब्लम आई। फिर ये जो समय है, ये जो इतिहास लेखन की परंपरा उस समय में कैसे थी, तो 1947 से लेकर तो 60 तक हम लोगों को उनके इतिहास के बारे में लिखने वालों का कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो देश के लिए बहुत बड़ा अलग समय था। और उस समय में हम लोग इस प्रकार के जो है एक सॉलिड कंक्रीट बेस्ड वाला इतिहास को जो है समझना, उसके बारे में लिखना, वो समय ही नहीं था। और इसीलिए शायद उस समय में आदिवासियों का इतिहास जो है 60-70 के बीच में अनटच्ड इस प्रकार का इतिहास रहा।
उस समय में सबसे ज्यादा जो है देश में अगर किसी के बारे में लिखा और सोचा जाने लगा था तो वो समाज था कृषक समाज। और इसीलिए कृषक समाज, जैसे कि हम लोग 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग किसानों की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, और इसीलिए उस समय में आदिवासी हमारे लिए सेकेंडरी हो गए थे। और उस समय में जो है मानव और प्रकृति के संबंध के बारे में भी बिल्कुल भी सोचा और लिखा नहीं गया था, इस प्रकार का हम लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद वाला जो समय है कि ट्राइबल के बारे में जो कुछ भी लिखा गया था, थोड़ी बहुत जो कुछ भी चर्चाएं उस समय करते थी, वो एक एथनिक आइडेंटिटी के रूप में उनके ऊपर में चर्चा हो रही थी। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा उस समय में हुई, लेकिन ट्राइबल नॉट द फोकस ऑफ द हिस्टोरिकल राइटिंग्स इन इंडिया इन 60s एंड 70s। जैसे कि उसके बाद में जो जैसे कि के.एस. सिंह और वेन फुरेर हेमांडोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लेखकों ने जो है ट्राइबल एग्रेरियन संरचना जो थी उसके संबंधों पर इन लोगों ने लिखना उस समय में चाहिए था, लेकिन वो भी हम लोगों को राइटिंग्स में नहीं दिखाई देता। और इसीलिए ट्राइबल एग्रीकल्चरल या एग्रेरियन रिलेशन जो है वो हम लोगों को उस समय में समझ में नहीं आई, और हम लोग बाद में उसके ऊपर में बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मैं बात कर रहा था उसको नकारा गया था, उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाए। इसके बाद वाला जो समय आता है, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नेहरू के विकास मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर भी जो कुछ सवाल उभरने लगे थे, जैसे कि हु वेर द ट्राइब्स, या ट्राइब किसको कहा जाएगा, इस प्रकार का जो है सवाल उस समय में खड़ा हो गया था। और नतीजा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ लोग सामने में आते हैं, जैसे एफ.जी. बेली जो है वो ट्राइब कास्ट एंड नेशन नाम की किताब में उन्होंने ये कहा था कि हर कास्ट जो है कभी ट्राइब था, यानी एक धागे के अगर हम लोग 2 सिरे करेंगे तो एक धागा जो है ट्राइब का है और वही धागा जो है धीरे धीरे कास्ट के तरफ में जाता है। तो एक लाइन पे कास्ट और ट्राइब को लाने का काम इन्होंने किया हुआ है। इसके आगे में और भी जो जैसे सुरजीत सिन्हा जो है वो अपने किताब में जो कहते हैं कि कास्ट इवोल्यूशन में ट्राइब ही नहीं, उनका ये कहना था कि जो कास्ट का जो ओरिजिन जहां पर होता है, जो समाज इस प्रकार से जहां है, या जो वर्ण है या जाति व्यवस्था जहां पर है, वहां ट्राइब है ही नहीं। और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एक टेरिटोरियल आइसोलेशन उस समय में थी और ये इस प्रकार के सिस्टम में वो लोग थे ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के मॉडल में जाति व्यवस्था में ट्राइबल्स को हम लोग जबरदस्ती बिठाने की जो कोशिश करते हैं वो भी यहाँ पर मुझे गलत नजर आती है। उसके बाद में निर्मल कुमार और जी.एस. भुरिये ये लोग कहते हैं कि ये लोग जो है कास्ट एम्बिट के जो है पार्ट है, पार्सल है, यानी वो हिंदुओं की जो प्रणाली थी या उनकी जो व्यवस्था थी उसके सबसे निचले स्तर पर आते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये रीजनल आइसोलेशन में जब लोग थे और उनके सिस्टम के करीब कहीं पर भी नहीं थे तो उनको आप लोग जबरदस्ती किस प्रकार से सिस्टम में बिठाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर समझ में आती है। इन लोगों का वो एक तर्क था, इनका एक नैरेटिव उस समय में ये था कि कल्चरल डिफ्यूजन के कारण जो है ये जंगलों में चले गए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये एक और चीज है कि ये लोग भुरिये और ये जो निर्मल कुमार जैसे जो विद्वान मंडली थे, इन लोगों ने फिर जो है हिंदू समाज और उसके बाद में जो ट्राइबल समाज है इनके बीच में समानताएं ढूंढने की कोशिश करने लगे, और जिसके आधार पर वो प्रूव कर पाए कि ये दोनों तो एक ही है, डिफ्यूजन के कारण ये लोग डिफरेंट हो गए समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी विषमताओं के बारे में इन लोगों ने किसी प्रकार की चर्चाएं अपनी किताब में नहीं की है, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो एक और इतिहास लेखन का जो एंगल है ट्राइब्स के बारे में, पर्टिकुलरली हम लोग मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ द नेहरूवियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी मार्क्सवादी चिंतकों ने हमेशा असमान विकास की बात को सामने रखा, और उन लोगों ने उस समय में ये भी कहा कि औद्योगिक पूंजीवाद का उन लोगों ने विरोध किया हुआ था। तो उनका एक जो आधार था शोषण वाला या वंचितों वाला या फिर असमानता जो है समाजों के बीच में था, तो इसका विरोध वो लोग उस समय में कर रहे थे। और इसीलिए उन लोगों का आदिवासियों के बारे में जो समझ थी वह यही थी कि ये आदिवासी भूमिहीन वर्ग और अल्प कृषक समाज जो है ये उत्पत्ति जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक डिफ्यूजन से पैदा नहीं हुआ है बल्कि वो शोषण से पैदा हुआ है, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसीलिए किसान आंदोलनों में वो लोग आदिवासियों को जोड़ने लगे, और यह आंदोलनों में जो है इस प्रकार का कथन वो लोग करने लगे कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से नहीं वरन
एक जो पॉलिटिकल प्रोग्राम का हिस्सा उन लोगों ने आदिवासियों को बनाने का उस समय में प्रयत्न किया था। तो ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है। यानी ट्राइबल्स लोगों को पीजेंट्री के साथ में जोड़ना, वो लोग उन लोगों को अलग नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से तो ये लोग जो ट्राइब्स थे, जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, उसमें जो मार्क्सवादी लोगों ने जो है उसमें फ्यूडलिज्म उन लोगों ने उसमें ढूंढने की कोशिश की। उसमें उन लोगों ने प्री मॉडर्न जो पूर्व आधुनिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, या आधुनिक आदिवासियों के बारे में ट्रेडिशनलिस्ट शब्द का प्रयोग जो है, ये सब जो उत्पत्ति है ये एक मार्क्सिस्ट सोच के कारण में आए हुए हम लोगों को शब्द दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से सांस्कृतिक और अस्मिता दर्शक लिखान इस समय में भी नहीं हुआ है, इस प्रकार का हम लोगों को दिखाई देता है। 1970 के ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग जो है आदिवासी समाज, अर्थव्यवस्था एवं उनकी राजनीति के बारे में लिखने का नया ट्रेंड यहाँ पर आया हुआ दिखाई देता है। देश में जो एक विकास तंत्र अपनाया गया था, जो एक पैरामीटर बनाया गया था, उसके आधार पर जो है विकास तंत्र और लोकतंत्र के प्रति खामियों की वजह से जो है ये हुआ, ऐसा उनके ऊपर में आरोप लगाना चालू हो गया था। यानी आदिवासी पिछड़ रहे या उनका विकास नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी उस समय के विकास तंत्र की है, उस समय के लोकतंत्र की है। इस प्रकार का आरोप लगाने का कार्य यहाँ पर चलने लगा था। और कुछ राज्य में जो है धीरे धीरे कुछ जो है शक्तियां एकजुट होने लगी थी, कुछ संगठन सामने आने लगे थे, कुछ लोग अपने अधिकारों की बात करने लगे थे, क्योंकि संवैधानिक सुरक्षा जो दी गई थी, वहां जिन अधिकारों की बात की गई थी, वो अधिकारों और वो हकों की बात अभी लोग धीरे धीरे करने लगे थे। लेकिन इसी समय में विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन भी देश में चालू हो जाता है। और इसीलिए क्योंकि जितने भी आदिवासी स्थान हैं वो संसाधनों से, नैसर्गिक संसाधनों से उपलब्ध, और इस प्रकार के क्षेत्र को जो है विकास के नाम पर सरकार जो कब्जा कर रही थी, उनके ऊपर में नियंत्रित कर रही थी, और वो वहां के संसाधनों को हनन कर रही थी, और इसीलिए आदिवासी जो है वो विस्थापित हो रहे थे। तो इसके बारे में ये उस समय में बोला गया कि एक जो पूंजीवादी सोच के चलते हुए आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, उनके पारंपरिक अधिकार और हकों को छीना जा रहा है। इस प्रकार से राष्ट्रीय विकास के नाम पर आदिवासी जो है अपना त्याग और बलिदान कर रहे हैं। ये एक जो है, तो आदिवासी कब तक अपना बलिदान करते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ी जो है सोच उस समय में जो विकसित हो रही थी, जो आदिवासियों के अगेंस्ट जा रही थी, और जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन के कारण नए प्रकार की समस्याएं 1970 ऑनवर्ड्स देश में तैयार हो रहे थे। इस प्रकार से ये जो विकास तंत्र और ट्राइबल संघर्ष, ये हम लोगों को 70 ऑनवर्ड्स बहुत सारी जगह दिखाई देता है। इसके साथ ही जो एक नई सोच उभर कर आती है, जिसको हम लोग सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। इस सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के ही बहुत सारे लोग थे, जैसे कि रामचंद्र गुहा के बारे में सर ने बात किया था जब भी अपने पहले वक्तव्य में, और उसके बाद में और भी कई सारे लोग हैं, जो गाडगिल साहब है जिन्होंने किताब लिखी हुई है दिस फिशर लैंड टाइप के। तो ये लोग जो है एक अलग प्रकार का मॉडल उस समय में तैयार कर रहे थे कि एक पर्यावरणवादी इतिहास लेखन की परंपरा देश में चालू हुई थी। और इस प्रकार से ये जो सबाल्टर्न ग्रुप है, ये धीरे धीरे आदिवासियों के अधिकारों की और उनके हकों की बात यहाँ पर करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। और उसके बाद में उनके जो पारंपरिक जो अधिकार है, उनके बारे में हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है लिखना या उसके बारे में बात करना, ये परंपरा देश में चालू हो जाती है। तो ये जो एक पूरा एक हिस्टोरियोग्राफिकल जो स्केच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं। 1980 ऑनवर्ड्स जो है, इसके तरफ में तो सबाल्टर्न इतिहासकार जो है, तो कई सारे जो शुरुआती तौर पर सबाल्टर्न नहीं थे, वो भी बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे सबाल्टर्न बनते चले जाते हैं। और इस प्रकार से दो प्रवाह फिर से 1980 ऑनवर्ड्स तैयार हो जाते हैं। किस प्रकार का? पहला एक जो प्रवाह था, वो प्रवाह था जिसमें आदिवासियों की पहचान, उनकी अस्मिता, इन विषयों को शामिल किया गया था, उनके पारंपरिक प्रतीकों के और उसके बारे में वैश्विक जो मत है उनके बारे में चर्चाएं अब लोग जो है करने लगे थे, और उसके बारे में लोग लिखने लगे थे। दूसरा प्रवाह 1980 के बाद में जो आता है, वो जो है वो एसिमिलेशन की बात कर रहा है, वो ट्राइबल्स को जो है मुख्य धारा के साथ में जोड़ने की काम कर रहा है। तो इस प्रकार का एक दो प्रवाह जो है, एक जो उनकी खुद की पहचान को जो है दर्शाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा एक जो प्रवाह काम कर रहा है वो उनको मुख्य धारा के साथ में जोड़ने की काम कर रहा है।
इसके अलावा यही वो समय था 1900 ऑनवर्ड जो पीरियड था कि जहां हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, उत्तर संरचनावादी विचारसरणी, वो कहां से है? वो सबाल्टन इतिहासकारों के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर आती है। या पोस्ट मॉडर्निज्म की हम लोग जब बात करते हैं, उत्तर आधुनिकवाद, वो भी वही समय था जहां पर आदिवासियों को जो है इस साँचे में जो है विचारधारा के लोग, सबाल्टन आइडियोलॉजी पर्टिकुलरली जो लोग हैं, वो इन स्ट्रक्चर्स में जो है आदिवासियों को जो है जोड़ने की कोशिश करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से आदिवासी समुदाय एक अलग जो है वर्ग है, उनकी अलग संस्कृति है, उनके अलग मूल्य है, उनकी अलग सोच है। इन चीजों को अधोरेखित करने का काम जो है इस समय में हुआ है, जहां नवसंरचनावाद और उत्तरवाद में आदिवासियों के प्रति समझ जो है वो बदलती हमको दिखाई देती है। इसके अलावा जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग फॉर एलपीजी को हम लोगों ने स्वीकारा हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बातें जब हम लोग करते हैं, तो वहां हम लोगों को जो है आदिवासी एक इस प्रकार के नए पूंजीवादी जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी अड़चन तैयार करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज जो है ये समाज अलग है, ये नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, और ये रिसोर्सेज जो है जंगल के जितने भी मिनरल्स है या उनके जो भी रिसोर्सेज है, ये तो इंडस्ट्रियल समाज के द्वारा जो है उनके ऊपर में कब्जा करने की बात हो रही है। तो एलपीजी के माध्यम से जो एक नया ढांचा, एक नया जो स्ट्रक्चर देश में खड़ा हो जाता है, उसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस चीज को भी हम लोगों ने समझने की जरूरत है। एक जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जो एक नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी और वो पजेस करती थी देश के सबसे बड़े मिनरल्स को, वो ऐसे और बहुत ही संपन्न क्षेत्र जो है उनके अधीन थे, उनको उनके हाथ से छीनने का, निकालने का काम जो है 1991 के बाद में किया गया। यही काम तो कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, कॉलोनियल पीरियड में इससे दूसरा नहीं हुआ था। और इसीलिए कॉलोनियल पीरियड की जो पॉलिसीज थी, वो पीरियड्स के जो पॉलिसीज है वो जिम्मेदार थे आदिवासियों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों से बेदखल करने के लिए। अब अगर उसके हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं, तो आदिवासियों ने जो है जो उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की थी, उसको पूरी तरह से बेदखल करने का काम अंग्रेजों ने तब किया जब उन लोगों ने सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था देश में लागू की थी। ये दूसरा, उन लोगों ने नए प्रकार के एलेन टाइप के जो कानून जो है इनके ऊपर में थोपे थे। और तीसरा, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब उन लोगों ने यहाँ के आदिवासियों के ऊपर में थोपा, और इस प्रकार से उनके पूरे जो पारंपरिक हक है वो उनसे छीन गए थे। तो वो सेम मॉडल जो है वो हम लोगों को 1991 ऑनवर्ड्स या 90 ऑनवर्ड्स हम लोगों को देश में भी विकास के नाम पे कहीं ना कहीं लागू हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार से जो है नए प्रकार के प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, जिसमें स्टेट के खिलाफ में आदिवासियों का कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है, और इस प्रकार से कुछ मूवमेंट्स जो है तैयार होते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ दे, जैसे पर्यावरण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, तो जो नए नए प्रकार के जो माइलस्टोन्स हम लोगों को दिखाई देते, चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था। या अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण के बारे में लिखने की जो परंपरा चालू हो जाती है देश में, जहां आदिवासियों को प्रदर्शित किया जाता है, वो जैसे एक नया मॉडल माइलस्टोन ये था कि रामचंद्र गुहा जैसे लोगों ने जो है अनक्वाइट वुड्स, पीजन प्रोटेस्ट एंड इकोलॉजिकल चेंज इन द हिमालय, इस प्रकार का किताब लिखा। रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल ने द फिशर लैंड नाम का लिखा। और इन लोगों ने ब्रिटिशों की सत्ता जहां से प्रस्तापित होती है, और वहां से जो है एक नया माइलस्टोन माना था, क्योंकि ये पीरियड जो है वो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ रिसोर्स यूज, इस प्रकार का उन लोगों ने नाम दिया था कॉलोनियल पीरियड को। और प्रीवियसली जो हम लोग अगर आदिम संस्कृति की बात करते तो उसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिसोर्सेस they were occupied by the non-industrial societies. So the non-industrial societies से resources का हस्तांतरण जो है अंग्रेजों के समय में, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के तरफ में हस्तांतरित हो जाती है। इस प्रकार का हम लोगों को ये मॉडल दिखाई देता है। और उसके बाद में जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स अभी चालू है, उसमें सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी, और उनकी बहुत बड़ी मुझे मदद हुई कि जिसके माध्यम से उन लोगों ने ये प्रदर्शित करने का काम किया कि ये जो मॉडल्स है, डिफरेंट मॉडल्स में किस प्रकार से जो है जानकारी को या नॉलेज को जो है उसमें जोड़ा गया हुआ। अब हम लोग आते हैं कि कुछ हमारे
जो डिस्क्रिप्शंस है ट्राइब्स के बारे में, उसको किस प्रकार से गलत लिखा गया हुआ है, ये तो ढांचा हम लोगों ने देख लिया। उसके हम लोग जो कुछ जो एस्पेक्ट है वो मैं यहाँ पर जरूर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग उनको गलत किस प्रकार से समझते हैं। एग्जैक्टली हम लोगों से क्या भूल हुई है वो भी हम लोगों ने जो है यहाँ पर आज सोचने की जरूरत है। अब जैसे मैंने जब भी कहा था कि हमारे जो एक बहुत सारे राइटर्स जो है वो लोग किस प्रकार से जो है कॉपी पेस्ट करते चले गए थे, तो जिसमें मैंने सबसे पहले जो मेरा उल्लेख था कि प्राचीन ग्रंथों में इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है वो मैंने आपको बताया था। मध्ययुगीन काल में हम लोग जो है किस प्रकार से अदृश्य है, अनुपस्थित है, वो चीजें मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और जब हम लोग कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो इस समय में जो लिटरेचर तैयार करने वाला एक बहुत बड़ा जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसमें जेफ हैविट है, बॉमफील्ड फुलर है, एच.डी. संकालिया है, कैप्टन फोर्सिथ है, डी.डी. चैटरटन है, आर.वी. रसेल है, हीरालाल है, डब्ल्यू.वी. ग्रिक्सन है, वाई.एम. काड़े है, सी.यू. विल्स है, एम.पी. बुरड़कर है। इस प्रकार के ये जो लोग हैं, ये जो है आदिवासियों के बारे में उत्सुकता बंस यही सारी चीजें लिखते हैं कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं। इस प्रकार के जो कौतूहलपूर्ण जो प्रश्न है उनको उपस्थित किया हुआ है। और इन लोगों ने जो एक पहचान के रूप में आदिवासियों को नए नए टाइटल दिए हुए हैं। आज तक किसी ने पूछा ही नहीं आदिवासी को आप अपने आप को किस नाम से बुलाते हो भाई। लोगों के ऊपर में थोपा गया हुआ है, जैसे कि मैंने प्राचीन काल में उनके ऊपर में अलग अलग नाम जो थोपे गए थे, वैसे ही इन लोगों ने कंटिन्यू किया था कॉलोनियल पीरियड में भी। किस प्रकार के नाम दिए गए थे, लिए बोले गए थे, मूल निवासी, आद्री पुत्र, वन पुत्र, धरती पुत्र, लंगोटिए, अरण्यक, जंगल के राजा, इस प्रकार के वर्ड हम लोग उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इस पीरियड में। तो कहीं मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पारंपरिक, मैं इसीलिए बोला था कि प्राचीन काल में जिस प्रकार की बिरुदावली आदिवासियों के बारे में लिखी गई है, उसी बिरुदावली का इस्तेमाल हम लोग मध्यकाल में करते हैं, वही हम लोग कॉलोनियल पीरियड में करते हैं। और अगर हम लोग पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो उसमें भी वेरियर एंड विल या हेमंडॉर्फ है, सेतु माधुरा पगड़ी है, लीला दुबे है, एस.एस. सरकार है, स्टीफन फुक्स है, जी.एस. गुरिये है, ये सारे लोग, या इरावती कर्वे है, गियरसन है, डी.एन. मजुमदार है, ठक्कर बापा है, ये लोग जो है, या बाबा साहब अम्बेडकर के या महात्मा गांधी के माध्यम से जो कुछ भी शब्दों का नया जो सृजन किया गया था, वो आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब, गिरिजन, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हुए देखते हैं। उसके बाद में भी अगर हम लोग उत्तर आधुनिकता की तरफ में जैसे जैसे बढ़ते हैं और जो लिखने की परंपरा चालू होती है, उसमें गोविंद गारे है, एडवर्ड जे है, दुर्गा भागवत है, विलास सांगवे है, वेंकटेश अत्राम है, गोदावरी वारुडेकर है, या मोतीराव कंगाले है, भाऊ मांडवकर है। इस प्रकार के ये लोगों ने थोड़ा सा वास्तविकता को जो है उन लोगों ने हाथ रखा हुआ है। और इसमें ये लोग जो है आदिवासी इस्तेमाल करते हैं, आदिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए, लेकिन अभी अगर हम लोग कंटेम्पररी हिस्टोरियंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ उनके साथ में न्याय करने वाला एक नया लेखक वर्ग आया हुआ है, जो उनको सही मायने में कोयतुड़ कहता है, जो उन लोगों को जो है कोया धर्म से उन लोगों को जोड़ता है या उनकी पहचान के साथ में उनको जोड़ा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो है उनका रेखांकन हम लोग जो है इतिहास में करते हैं। और अब जाके कहीं हम लोगों को आदिवासी जो है धीरे धीरे समझने लगा हुआ है। तो जैसे कि मैं अभी कुछ एग्जांपल्स ही दूंगा, क्योंकि बहुत सारा जो एग्जांपल्स देना मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए कुछ ही एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग अगर कुछ प्रथाओं के बारे में अगर बात करते हैं, अब जैसे ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं, क्योंकि उसका मेरे उल्लेख आया था शुरुआती तौर पर। ह्यूमन सैक्रिफाइस मैं बोलता हूँ कि आदिवासी लोग करते थे। क्यों करते थे भाई? उस समय में सबसे ज्यादा खतरा कॉलोनियल पीरियड में ही है, उससे पहले भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता कहीं पर कोई एग्जाम्पल्स नहीं है। कॉलोनियल पीरियड में सबसे ज्यादा इंटरवेन किया गया था, सबसे ज्यादा जो है आदिवासियों के क्षेत्रों के तरफ में बाहरी लोगों का जो है प्रभाव बढ़ता चला गया था, उनके रिसोर्सेस को छीना जा रहा था, उनसे उनके जंगलों के ऊपर में कब्जा किया जा रहा था, जमीन को हड़पने का काम हो रहा था। और जो मध्यस्थ वर्ग है, ये वर्ग बहुत भारी मात्रा में उनका शोषण अलग अलग तरीके से करने पर जुड़ा हुआ था। सो नेचुरली उस समय में इन लोगों ने उसको एक जो है प्रतिबंधित क्षेत्र का संदेश के रूप में उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे हम लोग आज भी लिखते हैं बहुत सारे जगह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खंभा है तो उसमें खतरा लिख देंगे, डेंजर लिख देंगे। द काइंड ऑफ द
हम लोग कहेंगे कि वार्निंग लोगों को देने के लिए इस प्रकार के कुछ जो है इवेंट्स उस समय में किए गए थे, जिससे बाहरी लोगों का प्रादुर्भाव जो है वो ट्राइबल क्षेत्र की तरफ में ना हो, लोग डरे, लोग उस क्षेत्र में ना आए, इस प्रकार की ये प्रथा चालू हुई थी। उसी प्रकार से अगर मैं ट्राइबल आभूषण की बात करता हूँ तो ट्राइबल आभूषण जो है हम लोग उनको जो है एक सौंदर्य के प्रतीक के रूप में ही हम लोग देखते हैं। नहीं, हमारी सोच गलत है। वो सौंदर्य के प्रतीक ही नहीं तो वो आध्यात्मिक उनका भी रूप है, लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सुरक्षा के कवच थे। अब ये आभूषण सुरक्षा के कवच कैसे थे? जैसे आदिवासी समुदाय हम लोगों को जो है जंगलों में दिखता है, हम लोगों को पहाड़ों में दिखता है, नदियों में दिखता है या उनके आसपास दिखाई देता है, घास फूस में चलने वाला है, जंगल पहाड़ों में घूमने वाला। और इसलिए महिलाएं अपने पैर में जो पैजन पहनती थी उसके अंदर से जो एक साउंड निकलता था, बड़े बड़े होते थे और उसके अंदर से जो एक साउंड निकलता था, तो घास पर अगर कोई महिला चल रही है उससे जो वाइब्रेशन निकलते थे जिसके कारण कीड़े मकोड़े जीव जंतु अपने आप ही जो है रास्ता छोड़कर दूर चले जाते थे। इस प्रकार से वो सेफ्टी का एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा बहुत सारे आभूषण हैं। हेडगियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रकृति का ये नियम है कि हर जानवर अपने आप को जो है जंगलों में दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। दूसरे जानवर को अपने आप, जैसे नाग है फॉर एग्जाम्पल, वो फना निकालता है। पंछियां जो है अपने आप को अपने साइज से डबल करती है। इंसान भी जब जंगलों में जाता था तो इस प्रकार का हेडगियर वो एक प्रोटेक्टिव गैजेट्स के रूप में उसका इस्तेमाल करता था और जंगली मानस शास्त्र के हिसाब से उसका इस्तेमाल भी उसको फायदा उससे होता था क्योंकि ये अन्य जानवरों से बड़ा दिखता था। उसके अलावा उसके जो गर्दन होता है, गर्दन में लगभग आधे किलो की एक जो है उसको सूता इस प्रकार से गोडी में वर्ड है तो इस्तेमाल होता है। वो इस प्रकार का चांदी का या अलग प्रकार के मेटलों का बना होता था जो गर्दन में पहना जाता था। तो गर्दन पर अगर कोई तलवार से भी वार करेगा तो उस प्रकार का वो जो मेटलिक धातु वहां पे गर्दन थी वो उसका प्रोटेक्शन करता था, जिसके कारण किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती थी। आदिवासियों के जो आभूषण यहाँ से करंगड़ी से लेकर तो ऊपर तक हम लोगों को गोल गोल रिंग्स वाले जो है दिखाई देते हैं। इससे क्या होता था, इससे अगर आप जंगल में जाते हो तो आपको किसी भालू ने भी पकड़ लिया तो भी आपके ऊपर में पकड़ उसकी मजबूत नहीं होगी। इस प्रकार की सोच उस समय में थी। या कमर में बांधने वाले बहुत सारे आभूषण थे, या जो बालों में खोसने वाले जो आभूषण हुआ करते थे उनका भी हथियार के रूप में इस्तेमाल जो है आदिवासी महिलाएं करती थी, क्योंकि जिस प्रकार के परिवेश में वो रहती थी उस प्रकार का तंत्र उन लोगों ने विकसित किया हुआ था और इसीलिए उनको सिर्फ सौंदर्य के प्रतीक के रूप में देखना हम लोगों की गलत सोच का नतीजा है। इसी प्रकार से अगर आदिवासी मास्किंग करते हैं, आज हम लोग जो है उनको पिक्चरों में, टीवीज में, मूवीज में देखते हैं जहां पर वो झिंगा लाला टाइप का, हा हा हो इस टाइप का उनके बारे में जो कुछ भी दिखाया जाता है। इतने गिरे हुए वो लोग संस्कृति के मालिक नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो जंगलों में जाने से पहले ये मास्किंग की जाती थी, शिकार पर जाने से पहले चेहरे की मास्किंग, बॉडी की मास्किंग की जाती थी और ये मिट्टी कहीं भी गटर से उठाई हुई नहीं होती थी, उसमें मेडिसिन के वैल्यूज होते थे। जब आप लोग जंगल में जाते हैं तो आपका प्रोटेक्शन मच्छरों से या जो भी जीव जंतु से होना चाहिए आपकी बॉडी का, इसलिए जो है वो प्रोटेक्टिव गियर उस समय में इस्तेमाल किया जाता था, जो मूवीज में हम लोगों को अलग तरह से उनके बारे में दिखाई देता है। या हम लोग अगर गोधन की बात करते हैं, जो टैटूज उनके शरीर के ऊपर बनाए जाते हैं, उसका पर्पज भी केवल जो है सौंदर्य के प्रतीक के रूप में नहीं होता था, वो भी प्रोटेक्टिव गैजेट्स हुआ करते थे। मुगलों के समय से लेकर तो अंग्रेजों के समय तक आदिवासी महिलाओं को उठाकर लेके जाने की, उनको चुरा कर लेके जाने की परंपराएं हमेशा कायम रहती थी और इसलिए अपने आप को विकृत दिखाकर सुंदरता के विरुद्ध जो कुछ भी हम लोग कहेंगे कि अपने आप को दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश वो लोग करते थे, जिससे वो लोग बाहरी व्यक्तियों के बरजबरीपन से जो है बचे रहे। इस प्रकार का उसके पीछे में बहुत बड़ा एस्पेक्ट हुआ करता था। तो हम लोग सभी प्रतीक मानक जो है, तो ट्राइबल स्टडीज जब हम लोग करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उनके प्रमाण जो है, प्रतीक है, वो अलग है और उस प्रकार के अलग चीजों को हमें सोचना चाहिए। अभी हम लोग कहते हैं कि ये लोग अंधश्रद्धा की जो है, बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा जो है वो लोग रखने वाले लोग हैं। मैं आप सभी से पूछता हूँ, विद्वान जनों से कम और सीमित संसाधनों के बीच में अगर आपको जीने की नौबत आ रही तो आप लोग किस प्रकार से जिएंगे, या हम लोग किस प्रकार से